My mic has been disabled. Sir, I'm gonna go ahead and. वीडियो भी आपने ऑफ किया होगा? नहीं सर, अनम्यूट इफ यू वांट टू. ठीक है, कैमरा ऑन. चले शुरू करो. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी. Sir, can you mute yourself for a while because I just introduce yourself. Hello everyone, this is Mohammad Talha Mushtaq and I welcome you all to the third session of Ask the Lawyer in Legal Arts online summer internship program. We are very delighted to have Mr. Mohammad Ahmed Qayyum with us today. We are very grateful to him for giving us time today, and thank you all for joining us today at 1 p.m. So Ahmed Qayyum would be talking about introduction to civil litigation, and he wanted the session to be very interactive, so he will be talking to each one of you through the chat box. He'll be asking you certain questions and you can reply to them in the chat box. So be very vigilant throughout this session. And Mr. Ahmed Qayyum, as an advocate of the Supreme Court of Pakistan, he is currently also the member of Punjab Bar Council and chairman of its Legal Education Committee as well. Sir Ahmed, thank you very much for being here with us today. Over to you, sir. Thank you, Tala. It's an honor for me to joining this. If you can lower the volume at your end. Tala साहब is sitting across the table for me. और इसमें echo आ रहा है बहुत ज़्यादा. And Tala साहब, if you can, friends, एक चीज़ प्लीज़ आप तमाम दोस्तों को इब्तिदा के अंदर मैं ये बीच में कहना चाहूँगा कि there is a PDF for today's lecture that I shared with Tala साहब. आई रिक्वेस्ट कि वो यहाँ पे आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर ली जाए. अव्वल तो गुफ्तगू और द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू प्रोसेस वी आर गोइंग टू गो थ्रू मुकम्मल तौर पे इंटरैक्टिव होगा, मगर इट्स स्टिल गुड टू गिव स्ट्रक्चर टू दिस डिस्कशन दैट वी आर गोइंग टू हैव. और उसको स्ट्रक्चर देने के लिए देयर आर 2 बुक्स जिसके अंदर से एक्सेप्ट्स मैंने आप तमाम दोस्तों के लिए करके आपके लिए आई एम बीइंग टोल्ड दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्टॉर्शन एट माई एंड. आप अपना माइक बंद कर लीजिए. कैन यू हेयर मी नाउ जी? अब क्लियरली आ रही है कि नहीं गुफ्तगू आवाज़? इज देयर एनी डिस्टॉर्शन स्टिल कि अब ठीक आ रही है आवाज़? ओके सर, इट्स क्लियर. 2 किताबें प्लीज़. अब आपसे PDF तला साहब बेसिकली शेयर कर रहे हैं. If you guys can just download them, they're excerpts from these 2 books which I recommend all the time. Introduction to a Litigation, one of the best books I've come across on the topic, Masood Ahmed Khatakian by the same gentleman. An approach to civil litigation, an approach to litigation actually, criminal का भी इसमें included है. इनके एक्सेप्ट्स उनकी इजाज़त के बगैर PDF के अंदर मैंने बना के आपसे शेयर किए हैं चंद चैप्टर्स के that I would want you to basically open up as we go through this entire process. But once again, litigation is a thing जो कि और ख़ास तौर पे civil litigation is a thing that you need to understand the basics और exactly हो क्या रहा है उसके अंदर, rather than take a look at the books, because books तो आपको लॉ कॉलेज में पढ़ा ही रहे होंगे. बट आज की जो गुफ्तगू होगी on a very basic level, it will be about to understand कि litigation होती क्यों है, और as soon as you understand कि litigation हो क्यों रही है, you will be in a better position to basically understand कि मैसेज ये आया कि they can't see me. आपने मेरे ख्याल में नहीं spotlighted you, sir. अच्छा, strange. My video is definitely not off. अब ऑफ करके दोबारा ऑन किया है मैंने. Can you guys see me now? Because मेरी विंडो में भी मैडम सारा नज़र आ रही हैं का बंद आ रहा है. So I spotlighted you here. The names of the books, दोनों वो जो आपको PDF है अगर आप डाउनलोड कर लें, PDF में दोनों के टाइटल्स की भी कॉपीज मौजूद हैं. इंट्रोडक्शन टू लिटिगेशन बाय मसूद अहमद खटक एंड अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू लिटिगेशन बाय द सेम ऑथर मसूद अहमद खटक. फेडरल लॉ बुक हाउस ने ये छापी हुई हैं किताबें और इनकी दोनों किताबें मौजूद हैं. क्विकली फर्स्ट,
we first need to understand कि litigation होती क्या है, और ज़्यादा तय में नहीं जाएंगे, ना provisions of law के बारे में भी बात करेंगे. What we will however talk about right now is try to make you understand कि ये मुख्तलिफ statements, plaint, written statement, framing of issues, evidence, और ये सारी की सारी होती क्या है. और उसके लिए टास्क बेसिकली आज के लिए ये है हम तमाम दोस्तों के सामने कि आई गिव यू एन एग्जांपल. मुकदमे तो बहुत नौइयत के हो सकते हैं सिविल के अंदर, और सिविल और क्रिमिनल की डिस्टिंक्शन आई इमेजिन आप सारे समझते ही होंगे. इट्स सॉर्ट ऑफ अ सर्कुलर डेफिनेशन कि सिविल वो होता है जो क्रिमिनल नहीं होता, क्रिमिनल वो होता है जो कि सिविल नहीं होता. बट डेफिनेशन सिविल लॉ की बेसिकली अमूमन ये है कि मामलात बिटवीन पार्टीज, इंडिविजुअल्स which are not criminal in nature. Criminal in nature वो केसेस होते हैं जिनको क्रिमिनल ऑफेंसेस डिक्लेयर किया गया है और उसके अंदर स्टेट अमूमन प्रोसिक्यूट कर रहा होता है. उनके अलावा तमाम जो मामलात होते हैं उनको इन अ ब्रॉडर सेंस सिविल डिस्प्यूट्स कंसिडर किया जाता है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ सिविल डिस्प्यूट्स कंसिडर किया जाता है. सिविल डिस्प्यूट्स बेशुमार नौइयत के हैं और वो अमूमन 99% ऑफ द केसेस के अंदर या तो ट्राइब्यूनल्स में चलते हैं या मोर इम्पॉर्टेंटली कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन जो कि सिविल कोर्ट होता है. आपके इलाके के अंदर जो भी लोकल सिविल कोर्ट होगा वहाँ पे चलते होंगे. और मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमे हैं, काफ़ी एडवांस नौइयत के भी मुकदमे कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं, सूट फॉर प्रीएम्पशन फॉर एग्जांपल, बट बहुत बेसिक भी होते हैं. और आप जो प्रोफेशन की इब्तिदा के अंदर ख़ास तौर पे दोस्त हैं उनका मामला जो होगा इब्तिदा के अंदर सिविल, क्योंकि लाइसेंस इब्तिदा के अंदर सिविल कोर्ट का मिलता है तो यू विल बी डीलिंग विद दो सिविल कोर्ट केसेस. और आपके लिए ये वाला टॉपिक आज का ख़ास तौर पे इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दीज आर बेसिक मुकदमे जो कि आप अपने प्रोफेशन के अंदर इनिशियली जहाँ से आप अर्न करेंगे. सो इट इज़ वाइटली इंपॉर्टेंट. रिटें आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपनी जुरिसडिक्शन आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो हाई कोर्ट के लेवल पे होता है. इब्तिदा में व्हाट यू गाइज नीड टू बेसिकली अंडरस्टैंड इज़ कि सिविल लिटिगेशन और उस नौइयत के मुकदमे जो कि इब्तिदा के अंदर जिससे आपको मिल भी सकते हैं और जिनसे आपकी कमाई हो सकती है, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये अगर आप फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन टू लिटिगेशन का जो एक्सेप्ट है उसके अंदर देयर आर टाइप्स ऑफ सिविल सूट्स आप यहाँ पे भी देख सकते हैं. और CPC आमिर रज़ा साहब की जो है उसके अंदर भी जो कमेंट्रीज़ हैं, आई थिंक सेक्शन 9 की कमेंट्री में या 6 के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि किस किस नौइयत के सिविल मुकदमे होते हैं और बेशुमार है. वहाँ पे तो 32-34 लिखे हुए हैं. मसूद खटक साहब ने कोई 10-12 मुकदमों की अक़साम लिख दी हुई हैं कि जो कि आपको आनी चाहिए इब्तिदा के अंदर सिविल कोर्ट के अंदर अगर आप जा रहे हैं. तो समझ, एक तो सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड परमानेंट इंजंक्शन, किसी को रोकने के लिए और किसी के हुकूक डिक्लेयर करने के लिए हुक्म इम्तनाई का दावा जो है वो यहाँ पे सूट फॉर स्पेसिफिक तामील मुख्तस का जिसे कहा जाता है. सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर रहा उसके लिए. सूट फॉर रिकवरी अगर पैसे आपने लेने. सूट फॉर पार्टीशन अगर कोई जॉइंट प्रॉपर्टी हो उसको अगर आपने जॉइंट प्रॉपर्टी के जो ओनर्स हैं उन्होंने अपने अपने हिस्से अलहदा डिवाइड करना है तो उसके लिए सूट फॉर पार्टीशन होता है. सूट फॉर पोजेशन, अगर कब्ज़ा आपने लेना है किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का उसके लिए आप अलहदा कर ये रेमेडीज़ इकट्ठी भी आप मांग सकते हैं. बट सूट फॉर पोजेशन, सूट फॉर रिकवरी जो कि मैंने पहले जिक्र किया. राइट ऑफ ईजमेंट को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता. रिकवरी ऑफ डैमेजेस, हाँ अगर किसी की वजह से आपको कोई नुकसान हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है तो आप उस पर डैमेजेस कर सकते हैं. सूट फॉर सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं होता. पंजाब के अंदर सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अब एप्लीकेशन जमा करवाई जाती है. कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का भी है. ये सारी चीज़ें अमूमन आपको मिलेंगी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत. तो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके लिए ज़रूरी है. बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू द टेक्निकलिटीज़ राइट नाउ. प्रीएम्पशन के भी दावे हैं. फिर फैमिली मैटर्स में सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का आप देखेंगे, जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, कस्टडी ऑफ माइनर्स, और इसके साथ साथ उसको क्या कहते हैं मेंटेनेंस के भी बीच में दावे आ जाते हैं. रिकवरी ऑफ डावर, डावरी आर्टिकल्स और मेंटेनेंस, बच्चों की मेंटेनेंस के भी ये इस नौइयत के मुकदमे हैं जो कि आपको इब्तिदा में आराम से मिल सकते हैं. फैमिली मैटर्स वैसे अगर उसके आप रेलेवेंट कानून देखें तो समरी नौइयत का, उसमें हम इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. रेंट मैटर्स भी, उसके ऊपर भी जजमेंट पिटिशन एंड स्टफ लाइक दैट. मैडम फातिमा अगर आप CPC देखें तो कोर्ट्स ऑफ ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन मींस द इनवेरिएबली मोस्ट केसेस के अंदर सिविल कोर्ट्स. सो ये देख लीजिए. आई गो बैक टू द मीटिंग एक सेकेंड.
अच्छा, दूसरा आगे, ये तो आपको मैंने बता दिया इसका नाम। आई जस्ट वांटेड टू सेट अ टास्क फॉर यू गाइस, जिसके ऊपर हम, जिसके बारे में हम शो गैलरी कि जिसके will basically on a very basic level explain to you कि civil courts और ये सारे के सारे बने क्या हैं। I'll set a simple problem for you guys. Simple problem ये है कि एक आपके पास क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मैंने फ़लाँ बंदे को 15 करोड़ रुपए उधार दिए और 1 महीने में उसने मुझे वापस करने थे। एक रिटन मुआहदा हमारे दरमियान में हुआ, मगर जब अब मैं पैसे 1 महीने के बाद लेने के लिए गया हूँ तो उसने मुझे कहा कि भाग जाओ, मैं नहीं देता, जो मर्ज़ी कर लो जाके, बल्कि वो बड़ा पॉलिटिकली स्ट्रांग बंदा है। तो वो कहता है कि मैं तो नहीं पैसे दूंगा। अब आप वकील साहब बताइए क्या है। सो क्लाइंट आपके सामने बैठा हुआ है, तो अब आपने क्या करना है, आप उसके लिए क्या करेंगे, किस तरीके से क्या चीज़ें आपको चाहिए, वो आपने, दिस इज़ द मोस्ट बेसिक मुकदमा दैट यू कैन डू। यू विल प्रोबेबली फाइल अ सूट फॉर रिकवरी फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, राइट। रिपीट शहबाज साहब ये कह रहे हैं कि जैसे कि शेरजान साहब ने कहा कि बिल्कुल सूट फॉर रिकवरी हमने एक जमा करवाना है कि एक बंदे ने आपके क्लाइंट से 15 करोड़ रुपए का लोन लिया, 16 करोड़ उसने वापस करना था 1 महीने के अंदर मार्कअप डाल के। क्लाइंट पैसे लेने के लिए गया, उसने कहा भाग जाओ, मैं नहीं देता। मुआहदा अग्रीमेंट साइन किया हुआ है और अग्रीमेंट साइन करने के साथ साथ अग्रीमेंट साइन किया और साथ उसने अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी के लिए भी दिए हुए हैं। तो पहला सवाल तो ये आपके ज़हन में आना चाहिए, नहीं जी सूट फॉर रिकवरी होगा, पूछ रहे हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वगैरह करने के लिए। अभी देखिए उन चीज़ों के बारे में आपने डिटेल्स मांग ली, ट्रांजैक्शन के कागजात ला के। आई एम टॉकिंग ऑन अ वेरी बेसिक स्केल। तो अब आपने करना क्या है, हम टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन टू लिटिगेशन। वो आपके पास वकील के पास आया तो यानी लिटिगेशन की तरफ ही हमने जाना और सिविल लिटिगेशन हमने करनी। फौजदारी का इसमें उनसे अभी क्लियरली नज़र नहीं आ रहा। चंद दोस्त कोशिश करेंगे कि क्रिमिनल साइड पे ले जाएं कि फ्रॉड का मुकदमा कर लें या कोई इस तरीके से, दैट डजंट कम इन, और वो आज के हमारे स्कोप में भी नहीं। अब बात ये है कि एक चीज़ आपको ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्लाइंट आपके सामने बैठा हुआ है, इंट्रोडक्शन, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन टू सिविल लिटिगेशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ लॉयर, नॉट अ स्टूडेंट। तो अब इंट्रोडक्शन के अंदर हम ये भी बीच में बात करेंगे कागज़ कौन सा इस्तेमाल होगा, कितनी कॉपियाँ साथ लगेंगी, सिविल कोर्ट कहाँ पे है, किधर हमने जाना है। ऑल ऑफ दैट कम्स इनटू द क्वेश्चन ऑफ लिटिगेशन। और वो आपके पास जो वकील आता, जो क्लाइंट आता भी है, वो इसलिए आता है कि ही वांट्स यू टू गाइड हिम थ्रू ऑल ऑफ दैट प्रोसेस। तो इस स्टेज के ऊपर सबसे पहले यार प्रोविजंस वगैरह की देखिए, ये जो आप मुझे लिख के मैसेजेस में भेज रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई होगा, ये आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दैट। अभी आपको समझाने की बेसिकली कोशिश है, आप डोंट गेट लॉस्ट इन एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ लॉ राइट नाउ। राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जी हमने करना क्या और कैसे करना है और क्यों करना है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि वो आपके पास क्यों आया, वो मोहल्ले के बदमाश के पास क्यों नहीं गया, या वहाँ पे लोकल MNA MPA के पास क्यों नहीं गया और उनसे क्यों नहीं कहा। वो तो आपके पास आएंगे, आप उनको कहेंगे जी मुकदमा जमा कराऊंगा, जवाब आएगा, इतने खर्चा होगा, इतनी मेरी फ़ीस होगी, इतने साल लगेंगे। तो हम साए के पास जाके ख़ुद बंदूक निकाल के जाके उसने पैसे हासिल करने की वापस कोशिश क्यों नहीं की। कोई दोस्त मुझे बता सकता है हुआ है? ऑल ऑफ दोज थिंग्स जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, दे आर मच 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 क्विकर आई इमेजिन। वाई सिविल लिटिगेशन का तो क्या है, उसके अंदर तो सालों लग जाएंगे, आपके पास क्यों आया है। और बल्कि उससे भी पहले फंडामेंटल चीज़, वो बंदा चाहता क्या है आपसे, व्हाट डज ही वांट फॉर यू ऑन अ वेरी बेसिक लेवल। व्हाट डज दैट जेंटलमैन जो कि क्लाइंट तुम्हारा आपके सामने बैठा हुआ है, वो चाह कह रहा है। ही बिलीव इन रूल ऑफ लॉ वगैरह नहीं, उन चीज़ों की ना बीच में बात कीजिए, ना थ्योरियाँ गिनवाने की ज़रूरत है, ना कोई करके। वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर लॉयर्स एंड वी टॉक अबाउट प्रैक्टिकल थिंग्स। रेमेडी शेमेडी वगैरह क्या मतलब, वो चाहता क्या है यार, सादे लफ्ज़ों के अंदर कोई मुझे बताए रिलीफ क्या चीज़ होती है। व्हाट डज ही वांट ऑन अ वेरी बेसिक लेवल, ही वांट्स टू विन हिज केस, ही वांट्स रिलीफ, क्या मतलब। गाइडेंस किस चीज़ की, हमने तो उसके लिए काम करना है। बिल्कुल सही है, आपने सही कहा। वो ना फेयरनेस ना जस्टिस वाली यहाँ पे कोई चीज़ है, वो पैसे वापस चाहता है, वो चाहता है 16 करोड़ रुपए उसकी जेब में पहुँचें। So what you need to understand is be very clear about your particular task. Your task is कि कोर्ट से आपने ना सिर्फ फैसला करवाना है, उस
फैसले को पैसों में एग्जीक्यूशन के ज़रिए कन्वर्ट करवाना है और ताकि इस बंदे की जेब के अंदर पैसे आएँ पहुँचें। दैट इज़ वॉट द कोर्ट्स आर देयर फॉर। करने को तो मोहल्ले के बदमाश भी कर सकते हैं, MNA भी बीच में सिफारिश वगैरह कर सकता है, बट सिस्टम इस तरीके से सेटअप किया गया है कि अगर एक बदमाश है तो फिर बेसिकली जिसकी लाठी उसकी भैंस, ज़मीन बदमाश भी कब्जा कर सकता है। इज़ नॉट गोइंग टू एडजुडिकेट कि फेयरनेस और एक्विटेबल एक्विटी का किसी ने जिक्र अभी पीछे किया था। सो बात यह है वो इसलिए आया है कि अवाम ने, और बल्कि सिस्टम इस तरीके से सेटअप हुआ है कि एक कोर्ट मौजूद होगा, वहाँ पे लोग वकील के थ्रू जाएंगे और वो वकील उनके सामने जो कानूनी रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं वो पूरी करके लेके जाएगा और कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसके यार पैसे देने बनते हैं कि नहीं। और पैसे जब वो डिसाइड कर लेगा हाँ देने बनते हैं, तो फिर सिर्फ कोर्ट के पास कोर्ट बल्कि जो आपको कहते हैं गवर्नमेंट या जो बिल्कुल सिस्टम है, दैट इज़ द बिगेस्ट बदमाश बिकॉज इट हैज़ एन एक्सक्लूसिव राइट टू कोर्ट्स, किसी के ज़बरदस्ती पैसे उससे हासिल करवा सकता है। डिग्री अगर आपके फेवर के अंदर कोई पास हो गई तो द कोर्ट कैन बेसिकली से टू अ बैंक के यार उसके अकाउंट में से पैसे ट्रांसफ़र करो। कोर्ट कैन से, कानूनी उसके पास पावर मौजूद है कि उसका अगर कोई प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के तौर पे उसको वो बेच के पैसों में कन्वर्ट करवा के इस बंदे को दे। दैट इज़ वाई द लॉयर इज़, वो बंदा एक वकील के पास आया है बिकॉज यू आर द गेट कीपर। करना जज ने है मगर करवाना इसके थ्रू वकील ने है। सो आपको मैं एक्सप्लेन करने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि इन प्रॉब्लम्स को, हर क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को आपने बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे पढ़ना है। पढ़ने को तो आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी पढ़ सकते हैं, CPC भी पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें, बट अच्छा जो वकील है ही थिंक्स ऑन द लेवल ऑफ कि अच्छा ये जो प्रोविजन ऑफ लॉ है इसको इस्तेमाल करके व्हाट आर द रेमेडीज़। आप मुझे रेमेडीज़ तो गिनवा रहे हैं, बट अच्छे वकील की फिंगर टिप्स के ऊपर होता है कि अच्छा मुझे अब डिग्री मिल गई तो मैं अरेस्ट के थ्रू भी, अटैचमेंट के थ्रू भी, सेल ऑफ द प्रॉपर्टी के थ्रू भी, और उसके अकाउंट्स के अंदर से भी पैसे ट्रांसफ़र करके और अरेस्ट थ्रू उसको सिविल प्रिजन में रखवा के भी हम हासिल कर सकते हैं। वो इस लेवल के ऊपर कानून को और ये प्रोसेस को समझता है। सो इट्स ईजी फॉर मी टू जस्ट स्टार्ट पॉइंटिंग यू आउट टू मुख्तलिफ CPC की प्रोविजंस वगैरह, मगर आपके लिए ये ज़रूरी है कि इन कवानीन को और इनके नीचे अच्छा वकील हमेशा ये सोचता है कि इसका मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है। अभी आज तो हम इंट्रोडक्शन की बेसिकली बात कर रहे हैं, बट CPC और जो सिविल की वकालत है उसका मज़ा ही बेसिकली ये है द लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन यू कैन ऐड टू इट एज़ वेल। सो डेमोक्रेसी का नुमान साहब कोई ताल्लुक़ नहीं है इसके साथ, ये स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट वगैरह वहाँ पे कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के अंदर या नॉन डेमोक्रेटिक के अंदर भी कोर्ट्स होते हैं और वहाँ पे भी इन्फोर्समेंट होती है, और वहाँ पे शायद थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर इन्फोर्स होती है। चाइना के अंदर तो वो सारे मुकदमे चाहे मर्डर की भी हों तो मैंने सुना कि 2 महीने में डिसाइड कर देते हैं। यहाँ पे हम सिविल के मुकदमे 8-8, 10-10 साल तक बीच में इसमें स्टे लेते रहते हैं। कमिंग बैक टू द नुक्ता, सो क्लाइंट आपके सामने बैठा हुआ है तो अब आप उसके लिए क्या करेंगे? वो आपकी तरफ देख रहा है, उसने सारे कागज़ आपको दे दिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने पढ़ लिए, सारी रिसर्च आपने कर ली, तो अब आप करेंगे क्या? व्हाट आर यू सपोज टू डू? व्हाट विल यू डू फॉर हिम? ये बताइए कोई दोस्त। फाइल अ सूट इन द कोर्ट का क्या मतलब है? प्लेंट आपने लिख लिया, सही बात है, प्लेंट क्या मतलब है? कागज़ के ऊपर जिसको कहते हैं एक अर्जी दावा आप लिखेंगे कि करेगा। मैं आपसे गुफ्तगू ये करना चाह रहा हूँ, इंट्रोडक्शन में हमने बात ये करनी है कि ठीक है ड्राफ्ट प्लेंट कंप्यूटर पे टाइप करेंगे या हाथ से करेंगे, दोनों हो सकता है। उर्दू में करेंगे, अंग्रेज़ी में करेंगे, दोनों हो सकता है। उसके साथ साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कागज़ कौन सा इस्तेमाल होगा, A4 यूज़ करेंगे, सफ़ेद करेंगे, अगर आप वहाँ पे कराची के अंदर हैं तो वहाँ पे नीला शायद करते हैं या ग्रीन वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, वो करेंगे। मैं आपको समझाने की इंट्रोडक्शन टू लिटिगेशन के अंदर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिस इज स्टफ दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू लिटिगेशन में भी आएगा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो व्हाट वकालत है। कितनी कॉपियाँ होंगी, कौन सा स्टैम्प पेपर साथ लगेगा, कौन सा फॉर्म साथ लगेगा, ये मुंशियों पे नहीं छोड़ा जाता। कौन सा इसको ये करने के बाद कहाँ पे जाएंगे, कॉपियाँ कितनी होंगी, फ़ोटो कॉपियाँ करवा के कहाँ जाएंगे, कौन सा स्टैम्प उसके ऊपर लगेगा, वो चीज़ें सारी की सारी, ये जो 2 किताबें आपको मैं सजेस्ट कर रहा था, दीज आर प्रॉब्ली द बेस्ट वंस और द ओनली बुक्स आई हैव कम अक्रॉस यहाँ पे पाकिस्तान में जिसमें स्टैम्प्स की भी कॉपियाँ, जिसके अंदर इंडेक्स कौन सा लगेगा। मसला इन किताबों का ये है कि ये इस्लामाबाद में वो वकील साहब बेस्ड हैं तो इस्लामाबाद स्टाइल में किया हुआ, लाहौर के अंदर थोड़ा सा फ़र्क मामला है।
उसके लिए बार वोकेशनल कोर्स का हम एक मैनुअल भी तैयार कर रहे हैं और उसके लेक्चर्स वगैरह भी मौजूद हैं। बट आपको ये कह रहे हैं कि अग्रीमेंट अटैच करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें आपने बना ली, उर्दू में लिखा, अंग्रेज़ी में लिखा, कितनी कॉपियाँ लगाई, +3 होता है, जितने आपके डिफेंडेंट्स हैं उतना +3 आप कॉपी साथ लगाएंगे यहाँ पे कम से कम लाहौर के अंदर। कि अगर 3 डिफेंडेंट्स रखे हुए हैं, इसमें तो हर एक ही होगा, वह 4 कॉपियाँ आपने बना के वहाँ पे जमा करवानी होंगी। यार किताबों की रिपीट वगैरह करने के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके साथ ऑलरेडी PDF के अंदर ये किताबें शेयर भी की जा चुकी हुई हैं, इनके चंद सफ़हात और टाइटल्स एज वेल। कमिंग बैक टू द नुक्ता, दावे के अंदर आपने लिख दिया कि दावे में आप क्या लिखेंगे, कोई दोस्त मुझे बता सकता है? अब बिकॉज देखिए ड्राफ्ट प्लेंट ड्राफ्ट करने के अंदर भी, और मैं आपको लिटिगेशन में कर रहा हूँ, इट इज़ वेरी वेरी लॉजिकल। सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे कि किसके पास जा रहे हैं, इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज लाहौर, ठीक है, नहीं ग्राउंड्स नहीं, क्लेम नहीं, ये जो आप सारी की सारी चीज़ें गलत। फिर आप कौन हैं, इट्स वेरी वेरी लॉजिकल। सिविल सूट का आप ऊपर नंबर लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे प्लेंटिफ, यानी आप जो दावा जमा करवा रहे हैं आपका नाम वल्दियत, ताकि आप आइडेंटिफाई हो सके। अभी नहीं क्लेम, ग्राउंड, रिलीफ नहीं भाई, ऑर्डर में जेन खोल के, इट इज़ ऑल वेरी वेरी लॉजिकल कि उसमें आप क्या चीज़ें लिख रहे हैं, आप कौन हैं और वर्सेस किसके ख़िलाफ़ दावा जमा करवा रहे हैं। वो जिसने पैसे वापस करने हैं उसका ख़िलाफ़ आप कर देंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी में आपने रिलीफ वगैरह हासिल करनी है, अटैचमेंट करवानी है, तो शायद अगर DJ की प्रॉपर्टी है तो आप उसके बारे में भी लिख देंगे कि उनके अगेंस्ट भी आपने कोई इंजंक्शन मांगा हुआ। फिर आप टाइटल लिखेंगे कि जी उसके अंदर लिखेंगे कि मांग क्या रहे हैं, सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी एंड फॉर रुपीज़ इतने इतना अगेंस्ट डिफेंडेंट, रिस्पेक्टफुली शो। पहले में वो जज, आई मीन लुक एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ जज, एंड इट इज़ ऑल वेरी वेरी लॉजिकल। जज के सामने आप आके खड़े हो जाते हैं और आप कहते हैं कि जी मेरा दावा है, तो पहली चीज़ वो क्या कहे, वो कहेगा जी आप कौन हैं। पहले पैराग्राफ में आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि द प्लेंटिफ इज a citizen of Pakistan who entered into an agreement with the defendant. Defendant is also a citizen of Pakistan who entered into ये करके, फिर the facts giving rise to this particular case। फिर आप लॉजिकली सारे का सारा इसके अंदर दावे के अंदर लिखेंगे वो फैक्ट्स जिनकी बेसिस के ऊपर आपका कॉज ऑफ एक्शन या आपका क्लेम अराइज करता है। क्या होगा, एक तो ये चीज़ है कि जी मैंने मुआहदा साथ लगा दिया, उसने मुझे पैसे देने, मुझे पैसे दे नहीं। अच्छा वकील लॉजिकली ही ब्रेक्स एवरीथिंग डाउन टू इट्स लिम्स, और जो मुख्तलिफ चेन के जो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं उसके ऊपर, दैट ऑन सच एंड सच, ये तारीख के लिए he requested me for money, we entered into an which I accepted, we entered into an agreement, written agreement is here, क्लॉज सच एंड सच के तहत ये मैंने इतने पैसे देने थे, ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट साथ लगी हुई है या ये चेक लगा हुआ जिसके तहत मैंने पैसे दिए, ये पैसे उसको बीच में दे दिए, क्लॉज इतने के तहत उसने मुझे ये पैसे वापस करने थे, यानी ऑब्लिगेशन। उसने इतने दिन गुजर चुके हुए हैं, उसने देने थे, उसने वापस नहीं किया, उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया, डिफ़ॉल्ट। देन डिफ़ॉल्ट के बाद देयरफॉर ही इज़ लायबल टू पे मी इतने प्लस पैसे वगैरह, इतना मार्कअप वगैरह, तो इसलिए उसके अगेंस्ट रिलीफ बनती है। 3 पैराग्राफ्स अगर आप CPC देखें, और भी पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन, कोर्ट फ़ी, और इसके अंदर आपका कॉज ऑफ एक्शन की का भी आप अमूमन लिखते हैं। उसके बाद फिर जैसे मेरे दोस्त कह रहे हैं, प्रेयर का क्लॉज आएगा जिसमें आप कहेंगे डिक्री फॉर रुपीज़ इतने इतने में भी मे काइंडली भी पास अगेंस्ट द डिफेंडेंट एंड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ के इतने पैसे दिए जाएं, और नीचे जाके वेरिफिकेशन होती है कि जो ऊपर मैंने कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और ओथ के ऊपर आप सारे का सारा ओथ कमिश्नर से लगा के ठप्पा वगैरह लगवा के आप जाके जमा करवा देते हैं। आप जमा करवा देते हैं, उसका क्या मतलब है? कोई दोस्त मुझे बता सकता है किस तरीके से होता है? व्हाट इज़ दैट? जमा करवाने का क्या मतलब होता है? और मैं आई कैन टेल यू द आंसर टू दिस, बट आपसे मैं बेसिकली इसलिए बात कर रहा हूँ कि जमा करवा देना, ये सारी की सारी चीज़ें स्टूडेंट्स और ये जो जूनियर्स होते हैं वो कह तो देते हैं, लेकिन किधर करना है, किस तरीके से करना है। कोर्ट रजिस्ट्रार का आप यहाँ पे मैडम फातिमा कह रहे हैं, रजिस्ट्रार नहीं, यहाँ पे कम से कम सिविल कोर्ट के अंदर, लाहौर के अंदर तो हमने दायरी ब्रांच जिसे कहते हैं, उसके पास सीनियर सिविल जज के पास भी जाता है। इसके लिए आई वुड रिकमेंड कि अगर आप लाहौर से हैं
तो बार वोकेशनल कोर्स के अंदर हमने सिविल कोर्ट में जाके सीनियर सिविल जज साहब की असिस्टेंट्स के साथ, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के साथ वीडियो बनाए हुए हैं कि ये यहाँ पे फाइल उठा के इसके पास जाती है, यहाँ पे इसको चेक किया जाता है, पड़ताल करने के बाद फिर आगे फाइल इस तरह भेजी जाती है, उसके बाद फिर एक जज को मार्क कर दी जाती है और उस जज के पास फिर फाइल चली जाती है और फिर वहाँ पे आप जाके ये सारा करते हैं। सो दायरगी आप अपने लोकल जो आपके सिविल कोर्ट्स हैं, आपकी वकालत का बेसिकली एक मकसद ये भी है कि आपको पता हो कि सिविल कोर्ट कहाँ पे है। दैट इज़ पार्ट ऑफ एन एसेंशियल। अगर पता ही नहीं कहाँ पे जमा करवाना है तो दावा कहाँ पे जमा करवाएंगे? रक्षा वाले को कहेंगे कि यार सिविल कोर्ट ले जाओ, वहाँ पे जाके कहाँ पे करना है। सो आप जो सारे इब्तिदा में ट्रेनिंग के अंदर है, दफ्तर में बैठ के वकालत नहीं होती। बार वोकेशनल कोर्स अगर आप पंजाब बार काउंसिल की वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाएं तो वहाँ पे वीडियोस सारे के सारे मौजूद हैं और जो लास्ट साइकिल हुई है उसके वीडियोस सारे के सारे अगर आप मेरे यूट्यूब के चैनल के ऊपर जाएं तो you'll be able to see them there as well. Now quickly moving on, इशू बेसिकली ये है कि आप सारे दोस्तों को अगर आपने वकालत बीच में करनी है तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी, दफ्तर वकालत सीखनी जाके वहाँ पे बैठे मुंशियों का काम किए बगैर और ख़ुद जाके वो जगह देखे बगैर नहीं हो सकती। नाउ कई बंदे में इसके लिटिगेशन के बारे में फॉर एग्जांपल ये कहा जाता है कि लिटिगेशन कैन बी लाइक प्लेइंग लूडो। कोई बता सकता है लूडो के अंदर होता है कि जी 4 गीटियाँ हैं आपकी, आपने चांस के ऊपर है, आपने यूं करके बीच में फेंक दी, 4 आया 6 आया, क्या हुआ किस तरीके से, उसके मुताबिक आपके पास ऑप्शंस होती हैं कि ये 4 आप चीज़ें गीटियाँ मूव कर लें। वो बहुत ही बेसिक और नॉन सोफिस्टिकेटेड लेवल होता है। इफ़ यू आर अ ग्रेट लॉयर एंड यू अंडरस्टैंड सिविल प्रोसीजर और लिटिगेशन प्रॉपरली, यू प्ले चेस। चेस के अंदर हर जो पीस होता है मुख्तलिफ अंदाज के अंदर मूव करता है। 7-11 का दाएं से आप उसके ऊपर हमला कर लें, फ्रंटल असॉल्ट करना है तो सामने से रिटन स्टेटमेंट जमा करवा दें या स्टे एप्लीकेशन को आप अटैक कर लें। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आप इन मामलात में जितनी तह में जाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। लिमिटेशन का भाई से क्या ताल्लुक़ है, आप बीच में कमेंट कर रहे हैं। लिमिटेशन इज़ अगर अब लेट्स फोकस ऑन दिस। आपने बीच में ये मुकदमा जमा करवा दिया और आपने वो एक जज को भी मार्क हो गया। कोई दोस्त अब बता सकता है कि उसके बाद आपके ख्याल में क्या होगा लिटिगेशन के अंदर? मुकदमा तैयार करके जमा करवा दिया सिविल जज के पास, वो सीनियर सिविल जज ने मार्क कर दिया फ़लाँ सिविल जज के पास ये फर्स्ट क्लास के पास जाया जाए, तो अब क्या होगा? तो आप यहाँ तमाम दोस्तों ने आगे से जवाब में ये लिख दिया, मीर अली सारे के सारे ये कर दिया कि जी समन आप इशू करवाएंगे। भाई आपने आपके अगर समन इशू हो गए, सारे दोस्त अब सवाल के अंदर मुझे मेहरबानी करके ये बीच में बताएं कि आप तमाम दोस्तों को पहली हेयरिंग के ऊपर अपने समन्स इशू करवा के अपने क्लाइंट के का मुकदमा तबाह करने के कितने पैसे मिले? बिकॉज बात तो ये है कि दूसरा पार्टी चलें, अगर मोहम्मद अहमद की उम्र मुझे कोर्ट से समन आया, मैंने कहा वो इसके अंदर तो फिर ऐसा करना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी मैंने ट्रांसफ़र की हुई है वो तो मैं अपनी फूफी के नाम के ऊपर ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, ताकि अगर मेरे ख़िलाफ़ डिक्री भी पास हो जाए तो प्रॉपर्टी तो बीच में आगे हो ही नहीं सकेगी। डिपेंड्स ऑन एडवोकेट फ़ीस, नहीं पैसों के बारे में नहीं होता सही वकील वगैरह ये करने के लिए। इशू तो बेसिकली ये है, व्हाट यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड इज़ यू नीडेड टू डू समथिंग एल्स देयर एज वेल। अच्छा वकील जो है वो लूडो नहीं खेलता, वो चेस खेलता है या चेकर्स खेलता है। दो बिल्कुल सही कहा ये यहाँ पे मोहम्मद साहब ने कि आप टेम्पररी इंजंक्शन यू नीडेड टू प्रोटेक्ट, यू नीडेड टू एंटिसिपेट कि दूसरी पार्टी क्या करेगी। ये लूडो नहीं खेल रही कि आपने यूँ करके बीच में फेंक दिया और आप उसके मुताबिक यू हैव टू थिंक एक या 2 स्टेप्स आगे। स्टे एप्लीकेशन देके यू विल से कि जी ये मेरे पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, इनको बीच में एलियनेट करने से रोका जाए। अब सारे पसंद तो कर रहे हैं लेकिन सारे के सारे 13 हार्ट्स आ गए हुए यहाँ पे इस कमेंट के ऊपर, लेकिन जवाब सारों ने गलत दिए थे पीछे, राइट। सो देखने वाली बात ये है यार, थिंक अहेड एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। यार मैंने स्टे लेना ज़रूरी है बिकॉज अदरवाइज द पर्सन माइट एलियनेट द प्रॉपर्टी। और मैं 3 साल लगा के अगर डिग्री हासिल भी कर लूँगा, उसके नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं तो, और जिनको चेस नहीं आती यार वो बीच में वकालत के अंदर ना जाएं, लोगों के मुकदमे ना ख्याल करें, या फिर दूसरों को बैठ के देखें और हम आपको चेस खिलाना सिखा रहे हैं यहाँ पे। इशू बेसिकली आप तमाम दोस्तों को समझाने की ये ज़रूरत है कि यू नीड टू बी सोफिस्टिकेटेड, यू कांट डू इट। अगर सिविल कोर्ट के लेवल का वकील बने रहना सारी उम्र तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, वहाँ पे भी काफ़ी
सोफिस्टिकेटेड वकील बनते हैं, लेकिन अगर आपने सोफिस्टिकेटेड लेवल पे करना है काम तो यू हैड बेटर लर्न द इन्स एंड आउट एंड और वो आगे देखें कि अगली स्टेप क्या है। यार लेट्स गेट सीरियस अगेन प्लीज़, बिकॉज मजाक के अंदर ही सारे का सारे वक्त गुजर जाना है। इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि इसके साथ आपको स्टे भी लेना चाहिए था। स्टे क्यों लेते हैं? ताकि वो बंदा आगे अपनी प्रॉपर्टी ना बेच सके, और इस जज से आप ऑर्डर वगैरह ये सारा करवा रहे हैं। तो अब समन्स दूसरी पार्टी को चले गए। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ डिफेंडेंट, कि आपके क्लाइंट के पास को आ गया कोई बंदा, वो कहते हैं दरवाजे पे आया, वो समन लेके आया कि जी मेरे खिलाफ मुकदमा जमा हो गया, तो अब आप उसको क्या एडवाइस करेंगे? वो आपको कहता कि वकील साहब मुझे बताएं मैं इसका क्या करूं। कोई दोस्त बता सकता है? अब सारे दोस्त बीच में ये लिख रहे हैं कि जी 7-11 भी अब सिर्फ रिटन स्टेटमेंट में ही आती है, कम से कम पंजाब में अमेंडमेंट के बाद। सारे दोस्त कह रहे हैं जी हम फ़ौरन रिटन स्टेटमेंट जमा करवाएंगे। तो इन दोस्तों को भी अपने क्लाइंट का मुकदमा तबाह करने के लिए कितने पैसे मिले थे वो भी मुझे बता दें। यार देखो, बात ये है कि समन्स के अंदर अच्छा वकील जो है वो लिटिगेशन के प्रोसेस के अंदर हमेशा ये देखता है कि एक ऑप्शन आपके पास हमेशा ये भी होती है कि आप कुछ भी ना करें। चेक आपने ये करना है कि इफ़ आई डोंट, कि आपकी तामील की रिपोर्ट वगैरह वहाँ पे कोर्ट के रिकॉर्ड के ऊपर आई है कि नहीं। अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल तामील नहीं हुई या आपका क्लाइंट मुख्तलिफ जो तरीके होते हैं उसके तहत सर्विस अवॉइड करता है, तो कोर्ट इज़ नॉट गोइंग टू इन ऑल लाइकलीहुड पहली तारीख के ऊपर उसने यकतरफा एक्स पार्टी आपके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग्स नहीं करनी। वो सर्विस रिपीट करेगा, 1 महीना 2 महीने और गुजर जाएंगे। कोर्ट फिर अखबार इश्तिहार का भी ऑर्डर कर सकता है, जिसके ऊपर प्लेंटिफ अपने वकील को जाके कहे, प्लेंटिफ का वकील उसको कहेगा कि यार अखबार में करने इतने हज़ार रुपए दो। वो उनकी आपस में वैसे भी होगी, आप उसका ख़र्चा भी करवा रहे होंगे और टाइम भी बीच में बाय कर रहे होंगे। इफ़ यू वांट टू सेटल दिस मैटर एंड मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर द अदर पार्टी, आप पहली तारीख पे मुस्कुराते हुए रिटर्न स्टेटमेंट देने के लिए नहीं आ जाएंगे। अब लॉ में बहुत स्ट्रिंजेंट हो गया, तो लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे गो अहेड एंड डू इस प्रोसेस के अंदर दे ट्राई टू अवॉइड सर्विस, बिकॉज कानून में लिखा हुआ सर्व होने के बाद या एक तरफा एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स चल पड़ेंगी या फिर रिटन स्टेटमेंट आपने गिवन टाइम के अंदर जमा करवानी है। सो नहीं जी, स्टे के अंदर मुश्तबा शहजादा साहब पूछ रहे हैं कि स्टे के लिए कोई स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। अगर आप ऑर्डर 39 को गौर से पढ़ें और उस पर केस लॉ करें तो यू हैव टू शो दैट यू हैव अ प्राइमा फेशी केस के केस मेरिट्स पे बनता है। देखने में ज़्यादा डिटेल में जाए बखाया बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस आपके फेवर के अंदर है कि अगर आपको स्टे मिल जाए, नहीं मिलेगा तो आपको बहुत नुकसान वगैरह होगा और दूसरी पार्टी को कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और तीसरी चीज़ आपने दिखानी होनी चाहिए कि इर्रिपेरेबल लॉस एंड डैमेज, कि पैसों का मामला वगैरह सिर्फ नहीं है। अगर स्टे वगैरह आप नहीं मिला और वो एलियनेट हो गई प्रॉपर्टी तो आप रिकवर नहीं कर सकेंगे एंड स्टफ लाइक दैट। तो डिले टैक्टिक्स, देखिए डिले टैक्टिक्स अगर आप डिफेंडेंट की तरफ से हैं दैट इज़ पार्ट ऑफ योर ब्रीफ एज वेल। आई डोंट पर्टिकुलरली अग्री विद मुख्तलिफ लोग वगैरह जो ख़ास तौर पे इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं होते हैं, वो आके ये कहते हैं जी हमारा सिस्टम सही तरीके से नहीं चल रहा और हमारे सिस्टम में वकील साहिबान डिले वगैरह करते हैं और दोनों पार्टीज़ को मिल के बीच में जल्द कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द ये उनके फेवर के अंदर ये मामला डिसाइड हो और ये करें। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। और अगर कोई वकील इस तरीके से, डिफेंडेंट का वकील अगर इस तरीके से करता है, फॉर एग्जांपल इजेक्टमेंट की पिटिशन आपके ख़िलाफ़ हुई है, आपके क्लाइंट को उठा के वो बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है और आप उसमें डिले नहीं करते अपने क्लाइंट में और मुस्कुराते 3 महीने के अंदर फैसला करवा के अपने क्लाइंट को उसके घर से बेघर करवा देते हैं, तो व्हाट गुड वर यू। फ्रैंकली इशू ये है कि एडवर्सेरियल सिस्टम हमारा यहाँ पे सिविल कोर्ट के अंदर एक पार्टी ने तो डिले करवाना ही करवाना है। आपका काम है कि आप जज के ज़रिए उसको मामले को एक्सपेडाइट करवाने की कोशिश करें। अगर आप प्लेंटिफ की तरफ से, आपका काम है कि आप मुख्तलिफ अंदाज के साथ इसको स्लो डाउन करने की कोशिश करें डिफेंडेंट की तरफ से, ताकि पार्टी से एक के कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकें और दूसरी पार्टी पे प्रेशर पड़ेगा या डिले वगैरह होगा तो बेहतर होगा। तो टेम्परेरी इंजंक्शंस के बारे में भाई डिटेल में बात करेंगे, बहुत स्पेसिफिक। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन ओवरव्यू। अब ये साबित हो गया कि नहीं जी अब तामील हम एडवाइज़ नहीं कर सकते और अगर रिटन स्टेटमेंट नहीं जमा करवाई तो हमारा राइट टू फाइल रिटन स्टेटमेंट स्ट्राइक ऑफ हो। अच्छा मुझे ये बताइए एक चीज़ छोड़ें जी सारी, इससे पहले मैं पूछने भूल गया आपसे,
सारे डॉक्यूमेंट साथ लगा दिए, आपने सूट के साथ डॉक्यूमेंट्स अग्रीमेंट भी लगा दिया, आपने चेक्स भी लगा दिए, आपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी लगा दी, सारी नज़र आ रहा है कि जी बड़ा ज़बरदस्त आपका केस है, तो जज पहली तारीख के अंदर आपके फेवर में डिसाइड क्यों नहीं कर, प्लेंटिफ के फेवर में डिसाइड क्यों नहीं कर देता? कोई दोस्त बता सकता? व्हाट्स द पॉइंट? वो पहली तारीख के ऊपर इतना आपका 100% केस है, नज़र आ रहा है आपके साथ ज्यादती हो रही है, 16 करोड़ रुपए उसने देने थे, वो देता नहीं है, बीच में पकड़ के तो हुआ है इक्वल जस्टिस ऑडी, और ये मुझे ना बताएं ऑल्टर्न पाल्टर्न क्या सिलसिला होता है सारे का सारा, हुआ है राइट ऑफ हियरिंग, क्यों उसको सुनने की क्या ज़रूरत है? आई एम टॉकिंग ऑन अ वेरी बेसिक लेवल, मुझे ये थ्योरी है ना बताएं, उसको सुनने की क्या ज़रूरत है भाई? दूसरी पार्टी को ये डॉक्यूमेंट सारे के सारे साथ लगे हुए हैं, तो जज पहली तारीख में कह के वो ये 16 करोड़ रुपए तो बीच में अदा करो, और अगर कोई फिर मसला हो तो वो बंदा आके चैलेंज करता फिर बाद में, तो व्हाई डोंट यू जस्ट गो, व्हाई मेक दिस गाय जंप थ्रू ऑल ऑफ द हुप्स? और ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस वगैरह ये चीज़ें ना करें। नज़र आ रहा है कि आप लोगों को, इनको पता ही नहीं इसका क्या मतलब है। बेसिक झटके अंदाज के अंदर मुझे मेहरबानी करके बताइए कि वाई क्रॉस रूट ये वो वगैरह डजंट मेक एनी, वो प्रोसीजर क्यों? प्रोसीजर फॉर द सेक ऑफ प्रोसीजर तो नहीं होता ना। प्लीज़ लॉजिकली बताइए क्यों प्रूव करने की ज़रूरत है? क्यों वाई शुड नो वन बी कंडेम्ड अनहर्ड? उससे क्या फ़र्क पड़ता है? लोगों के 16-15 करोड़ रुपए खा गया, उसको सुनने की ज़रूरत ही नहीं, उसको तो जूते मारने चाहिए। ये आपने सही कहा कि क्रेडिबिलिटी वगैरह आपने चेक करना है। 2-3 चीज़ें इसके अंदर देखिए, डॉक्यूमेंट्स जाली भी हो सकते हैं। 16 करोड़ की डिग्री आंखें बंद कर दूसरी पार्टी को इसलिए सुनना है कि ही विल कम एंड टेल यू कि जिसमें वही ये है, मैंने तो इस बंदे को 16 करोड़ दे दिए हुए हैं, ये बंदा दोबारा से, मैंने 16 करोड़ लेने के बाद उसने दावा दोबारा जमा करवा लिया। दैट इज़ वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड द अदर पार्टी एज वेल। दैट इज़ वाई द लॉ बेसिकली सेज नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। इन सारी चीज़ों को आपको अंडरलाइंग चीज़ समझने की ज़रूरत है, बिकॉज देर इज़ अ लॉजिक टू इट। ये इसलिए नहीं है ये जो आप सारी कि जी आप, मैंने स्कूल के अंदर किताब में पढ़ा था ऑडी ऑल्ट्रम पाल्ट्रम या नेचुरल जस्टिस का ये सिलसिला था। देर इज़ अ लॉजिक टू इट। दैट इज़ वाई यू हेयर द अदर पार्टी एज वेल। नाउ यार भाई खुदा का खौफ करें, अक्यूज इसके अंदर बिलवड चाइल्ड ऑफ द ये कि फौजदारी का मुकदमा हो रहा है, यहाँ पे कौन सा अक्यूज आ गया इसके अंदर? ये सिविल की हम बीच में गुफ्तगू यहाँ पे कर रहे हैं। तो कई दफ़ा वकील का गुर असल में ये भी होता है कि उसको कहते हैं कि चुप रहना भी अच्छा होता है। लोग समझते रहते हैं कि बड़ा अक्लमंद बंदा है, बीच में बड़ा गहरा सोच रहा है वगैरह, इस तरह करके कोई बोंगी मारने के बाद फिर बंदे की खुद ही बेइज्जती हो जाती है अक्यूज का वर्ड इस्तेमाल कर। ठीक है, चेकमेट हो गया। कि उसको क्या कहते हैं, 16 करोड़ नहीं थे, नहीं। और मैं आपको ये बीच में बता रहा हूँ ना कि डॉक्यूमेंट्स कैन बी फेक एज वेल। दैट्स व्हाई यू वांट टू हियर द अदर साइड। नाउ लेट्स टेक इट बैक अगेन। प्रोसेस हम समझने की कोशिश करें। रिटन स्टेटमेंट जमा हो गई। सर कितना टाइम रहता है? सर वी आर एट 1:41, तो वी हैव लाइक 20 मिनट्स मोर। उसके बाद क्वेश्चन आंसर। बेशक आप उसको आगे ले जाएं। ठीक है, नहीं फाइन, ऑनलाइन है, चलने दीजिए। आई एम अवेलेबल फॉर यू गाइज। यार देखो, अब दूसरी पार्टी की बारी आ गई। रिटन स्टेटमेंट में आप क्या लिखेंगे? उसका जवाब, उसका दावा आ गया, उसके जवाब के अंदर आप किस तरीके से करेंगे? हाँ सही है, डिनाई, बट डिनाई व्हाट? कोई बंदा तो अपनी वल्दियत भी डिनाई कर देते हैं, कहते हैं साबित करो, ये करो। वंस अगेन यार देखो, आई अंडरस्टैंड ये सारी टेक्निकल नुक्ते, बट मैं आप दोस्तों के साथ ये करना, और आई कैन बी मोर सोफिस्टिकेटेड एंड यूज टेक्निकल जार्गन मोर देन यू गाइज, बट द आइडिया है इसके झटके अंदाज में उर्दू में हम गुफ्तगू इसलिए करें कि समझने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है। आप अपना डिफेंस कैसे सेटअप होंगे इस केस में? फॉर एग्जाम्पल क्या डिफेंस होगा और किन चीज़ों को डिनाई करेंगे? अच्छे वकील का तरीका ये होता है कि वो हर चीज़ को टुकड़ों में तोड़ लेता है, मूव्स में तोड़ लेता है। What is the case of the plaintiff? The case of the plaintiff is कि defendant made an offer, a plaintiff accepted it, they entered into an agreement. तीसरा, agreement के तहत पैसे देने थे, पैसे दिए गए, पैसे वापस इतने दिनों के बाद आने थे, पैसे इतने दिनों के बाद वापस नहीं दिए गए, और इसलिए देर इज़ एन ऑब्लिगेशन टू पे बैक, और देर इज़ नो लीगल इम्पेडिमेंट जिसके तहत ये देना है। 9 नुक्ते, 9 एलिमेंट्स हैं। आप एक इस चेन के तोड़ सकते हैं। अगर आप तोड़ सकते हैं तो यू विल विन योर केस।
सिंपल ब्लैंकेट डिनाइल भी कर सकता है, बट व्हाट यू कैन बेसिकली, द अच्छा वकील जो है वो जिस तरीके से ये एनालाइज करता है वो ये कह रहा है कि ऑफर दी, क्या वो दूसरी पार्टी साबित कर सकती है प्लेंटिफ के नहीं। सो अगर नहीं कर सकती तो यू विल डिनाई। व्हाट्सएप के किस तरीके से करेंगे, और उसने एक्सेप्ट की कि नहीं ऑफ़र, फिर उसके बाद एक मुआहदा साइन हो, यू कैन डिनाई द एग्रीमेंट एज वेल। और मुआहदे के तहत पैसे देने भी थे कि नहीं देने थे, अगर उसमें कोई क्लियर क्लॉज नहीं है या अगर कोई एम्बिग्यूटी है वो, और फिर एक्चुअली दिए गए कि नहीं, एक्चुअल पेमेंट भी डिनाई हो सकती है। और एक्चुअल पेमेंट के साथ आप ये भी कह सकते हैं कि डिनाई वापस उसने दिए कि नहीं, या फिर और कोई आपका डिफेंस है कि नहीं। व्हाट यू कैन बेसिकली से कि मैंने पे ऑफ कर दिया हुआ है, ये पैसे वापस देने, उसने एज ए पेमेंट आगे बीच में भेजी है कि नहीं, वो कैसे साबित होगा। अगर कैश है और सिर्फ बंदे ही दो मौजूद हैं, नॉट थ्रू अ चेक, यू माइट वांट, द क्लाइंट माइट वांट यू टू डिनाई। या फिर और फिर ये हो गया, उसके बाद फिर उस एक्चुअल पेमेंट उसकी टू द फ्रॉम द प्लेंटिफ साबित होती है कि नहीं। और उसके बाद फिर अगला एलिमेंट ये है कि अग्रीमेंट के तहत वापसी की पेमेंट, एन ऑब्लिगेशन क्या वापस देने की है कि नहीं। उसके लिए आपने मुमकिन आपने कोई ना कोई पैसे वगैरह दिए हों, किसी और मद में दिए हों, या वो भी आप बीच में साथ लगा सकते हैं। फिर आप डिफेंस के अंदर फॉर एग्जांपल, और दिस इज स्टफ दैट यू टॉक टू योर क्लाइंट अबाउट, देन योर क्लाइंट कैन से एज वेल, व्हाट यू कैन डू एज कि इसने हाँ देने थे, इसने मुझे पैसे देने थे लेकिन टाइम पे देने थे, टाइम पे नहीं दिए, उसकी वजह से मुझे इतना नुकसान हुआ, और इतना नुकसान के अगेंस्ट सेट ऑफ। या फिर उसने मुझे इतने पैसे नहीं दिए टाइम के ऊपर, या उसने किसी और बिजनेस में मेरा नुकसान किया, तो मेरा तो उसके यहाँ इतने पैसे होंगे, मगर मेरा काउंटर क्लेम है उसके अगेंस्ट। यू कैन डू अ काउंटर क्लेम एज वेल, यू कैन से कि यू पेड बैक एज वेल। तो दीज आर, ये भी हो जाए, अगर सारी की सारी चीज़ें भी आपके अगेंस्ट जा रही हैं, यू कैन से 3 साल के अंदर आना था, लिमिटेशन का नुकता एज वेल। या मुआहदा इस नौयत का था कि ही वॉज एक्टिंग एज अ बैंक विच इज़ इलीगल एंड ही वॉज नॉट ऑथराइज टू एक्ट इन दिस पर्टिकुलर मैनर, वो भी है। देर आर वेरियस डिफरेंट डिफेंसेज विच द लॉ ऑल्सो गिव्स यू एज वेल। तो रिटन स्टेटमेंट में ये चीज़ आ जाती है। सो स्टफ लाइक दैट, लुकिंग एट द स्ट्रेंथ ऑफ द एविडेंस, द डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट से ज़्यादा कि क्या फोटो कॉपी क्या है, ओरिजिनल किसके पास है, किसने साबित करना है, किस तरह करना। एज आई एम सेइंग, द मोर यू गो इन टू डेप्थ, द मोर मूव्स open up to you, more sophisticated। आपका कानून शहादत पढ़ा होगा तो पता होगा कि जी किस तरीके से ये डॉक्यूमेंट साबित होने हैं। उसके पास फोटो कॉपी हो तो साबित ही नहीं कर सकता। पेमेंट कैश के जरिए, डिनाइड पुट द ओनस ऑन हिम। तो द मोर सोफिस्टिकेट, एवेसिव डिनाइल का इससे यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है भाई। ये टेक्निकल जार्गन मेरे साथ ना प्लीज़ अभी कीजिए। वी आर जस्ट ट्राइंग टू एंड एक दूसरे को इम्प्रेस करने की भी कोशिश ना कीजिए। मैं नहीं इन चीज़ों से इम्प्रेस होता। बस सीधी सीधी झटका अगर आप जवाब देते हैं, रिटन स्टेटमेंट जमा करवा दी तो अब क्या होगा। तेरी ज़बरदस्त रिटन स्टेटमेंट तैयार करवा के, साइन करवा के आपने जमा करवा दी अपने क्लाइंट की तरफ से। यार ये टेक्निकल नुक्ते बाद में, पहले प्लीज़ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट जनरल इंट्रोडक्शन का ये लेक्चर है। रिटन स्टेटमेंट के बाद ये फ्रेमिंग ऑफ इशू क्या होता है, कोई समझ नहीं आई। खैर अब मुख्तलिफ CPCs के अंदर मुख्तलिफ तरीके लिखे हुए। रिटन स्टेटमेंट के बाद आपकी क्लाइंट कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकती है, डिस्कवरी भी हो सकती है, वो चीज़ों उनमें इतनी ज़्यादा हम तय के अंदर नहीं जाएंगे। अभी जट के ऊपर बेसिक स्ट्रक्चर वाली की बात हो रही है। ये कोर्ट हेयरिंग किस चीज़ के लिए, ये इश्यूज़ फ्रेम करने की क्या ज़रूरत होती है, क्या भला है यार इश्यूज़ फ्रेम करना। फैसला कर दें, दोनों पार्टियों ने जमा करा दिया वो, अब जाके अब क्या ज़रूरत है। दोनों पार्टियों ने अपने अपने कागजात जमा करवा दिए तो जाएं फाइनल ऑर्डर कर दें, व्हाई नॉट, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स कर लें, क्यों। ये देखो समझने की इसके अंदर बात ये है, आप सारी की सारी थोड़ी बहुत सही ही बात कर रहे हो, लेकिन समझने की इसके अंदर बात ये है कि जज को तो नहीं पता कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, कागजात सही हैं कि नहीं, इसने पैसे पे ऑफ कर दिए हैं कि नहीं, इसने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं कि नहीं।
सो द कोर्ट रिक्वायर्स कि जो पार्टीज़ हैं उन वो आके अपने डॉक्यूमेंटेशन, और डॉक्यूमेंट्स का भी नहीं पता कि असली हैं कि नकली है। अगर दूसरी पार्टी कह रही है कि मैंने तो मुआहदा साइन किया ही नहीं हुआ, इसके ऊपर ये सारे के सारे जाली हैं, तो फिर ओनस पहली वाली पार्टी पे आ जाता कि वो साबित करे कि एग्रीमेंट, ये देखें 2 विटनेसेस हैं, ये इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने साथ लगाए, ये देखें ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ये एग्जिबिट A1 है, और ये एग्जिबिट A1 है, तो इसके ऊपर ये देखें यहाँ पे डिनाई कर रहा है ये वाला बंदा, ये मेरे दस्तखत हैं, मैं एडमिट करता हूँ, ये 2 विटनेसेस हैं, जो 2 विटनेसेस पेश मैं साथ करवा रहा हूँ, वो आके कह रहे हैं कि उन्होंने हाँ साइन किए, तो देखें ये मुआहदा साबित हो गया। स्टफ़ लाइक दैट। तो इस तरीके से वो डॉक्यूमेंट्स करेगा। मगर इससे पहले जैसे आप तमाम दोस्त कह रहे हैं कि इश्यूज़ की एक होती है कि रादर देन कि अन्य वहाँ बैठ के सारे एविडेंस, उसकी ये कहानी इसकी ये कहानी, कोर्ट बता देता है पार्टीज़ को प्लीडिंग्स करके कि मेरी नज़र के अंदर सवाल उसमें ये है कि इसने इसके ये मुआहदा हुआ था कि नहीं हुआ था, इसका ओनस यानी ये बंदा ये साबित कर, क्योंकि एक पार्टी ये कह रही है एग्रीमेंट हुआ, दूसरी कह रही है डिनाई हम करते हैं, तो वो कहता है कि जी क्वेश्चन इशू फ्रेम करता है कि वेदर द एग्रीमेंट वाज एंटर्ड इनटू OPP के प्लेंटिफ साहब ओनस टू प्रूव ऑन प्लेंटिफ, यानी प्लेंटिफ खुद साबित करेगा एविडेंस के ज़रिए। अगर वो मुआहदा साबित नहीं करता तो आगे बीच में कुछ इज़ नॉट एंटाइटल टू रिलीफ। OPP सेकेंड इशू ये कि क्या पेमेंट उसके तहत हुई कि नहीं। OPP फॉर एग्जाम्पल मुआहदा हुआ और वो पेमेंट साबित नहीं कर सकता, तो देयर इज़ नो लाइबिलिटी टू पे बैक। देन आप डिफेंडेंट आके कहता है कि ये टाइम बार्ड है, तो वहाँ पे लिख दिया वेदर द सूट इज टाइम बार्ड OPD कि वो बीच में इसमें करेगा। तो पार्टीज़ को इब्तदा में बता दिया जाता है इश्यूज़ फ्रेम करके, जिसको कहते हैं कि बेसिकली स्टेट जुमले करके, और उसमें ये बता दिया जाता है कि किसने क्या साबित करना है, ताकि वो साबित करेंगे तो आप मुकदमा जीतेंगे, या वो साबित नहीं कर सकेंगे तो मुकदमा हार जाएंगे। फिर एविडेंस दी जाती है। कोई बता सकता है कि एविडेंस कैसे होती, क्या होता है। सुबह आ गए आपके पास वो क्लाइंट आके आपने अपने क्लाइंट को कॉल की है, आपके मुंशी ने कि यार जी सुबह एविडेंस है, प्लेंटिफ के आप वकील हैं, सुबह एविडेंस है। वो क्लाइंट आ जाता कहता सुबह एविडेंस है, आप कहते हैं हाँ सुबह एविडेंस है। तो एक दूसरे की तरफ चाय पीने के बाद कहते हैं, वो कहते हैं हाँ मगर करना की है और तो मैंने दसो सुबह क्या करना है। कोई बता सकता है क्या होगा अगले दिन, अगले सुबह क्या करना है। ये टेस्ट में नहीं की होती है यार, आसान जुबान में कोई बताओ क्या होएगा। क्लाइंट सामने बैठा हुआ, उसको क्या कहना है। वो कहता है हाँ जी दसो की गल की करना। सुबह बार बार गवाही, हाँ मैं गवाही देनी, लेकिन किस तरह देनी है, उधर जाके मैं की कहना है। एग्जामिनेशन इन चीफ की होंगी है तो क्रॉस की होंदा है, जब लिखी जा रहे हो उसको बताना है ना बंदे को। वी टॉकिंग अबाउट वेयर प्रैक्टिकल लॉयर्स ही सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस, उसको कल क्या कहना है। यू हैव टू ब्रीफ हिम कि उसने आके क्या कहना है, कहने बाद उसको भेज देंगे और उसके सामने पेश कर देंगे। कहते वो कहेगा एविडेंस के अंदर कल आके कहेगा ओथ आप उसको दे देंगे, हाँ जी सच सारा कहोगे। वो कहेंगे कि जी अब एग्जामिनेशन इन चीफ, जी हम आपकी एग्जामिनेशन चीफ करेंगे। वो आपको कहते हैं हाँ जी, आप उनको कहेंगे हाँ जी वो आपकी चेहरा देख रहा है, आप उसका देख रहे हैं। तो क्या करना है उसको, पहले कुछ ना कुछ तो आप बताएंगे। रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट क्या होती है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, क्या होगा। वो सिर्फ मुस्कुराता हुआ खुद आ जाएगा कि कोई डॉक्यूमेंट्स लेके आएगा, फ़ोटो कॉपीज़ लेके आएगा, ओरिजिनल्स लेके आएगा। ओरिजिनल अवेलेबल अगर नहीं है तो उसके लिए आपको पहले स्टेप्स वगैरह लेनी थी। दीज आर ऑल द स्टेप्स विच हैव टू यू नीडेड टू बी अवेयर ऑफ। और ये डॉक्यूमेंट जो आप कर रहे हैं वो आपने दावे के साथ भी लगाना। लिस्ट ऑफ रिलायंस होती है, लिस्ट ऑफ विटनेसेस होती है, कौन सा विटनेस आएगा, ऑल ऑफ दोज थिंग्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो टू यू। बार बार इसके प्रोसीजर के अंदर ये चीज़ें आपको सारी नज़र आती हैं। कानून शहादत, CPC, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये सारे आपस में मिल के दे गिव यू द टॉयज़ एंड टूल्स विद विच यू आर गोइंग टू प्ले विद दिस सारा मुकदमा। तो आपका क्लाइंट आ गया, आपने उसको कहा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आने, फ़ोटो कॉपी से यहाँ पे साबित नहीं होती। फ़ोटो कॉपी हमने साथ तो लगाई हुई थी, बट आज आप ओरिजिनल लाएंगे और आप कोर्ट में बीच में जमा कराएंगे। और फिर उसके ऊपर एग्जिबिट नंबर लगता है। एग्जिबिट की सिग्निफिकेंस ये होती है कि जो चीज़ एग्जिबिट नहीं होती, अगर आपने प्लेंट के साथ उसकी फ़ोटो कॉपी लगाई भी हुई है तो वो साबित नहीं हो रही। कोर्ट विल नॉट लुक एट दम एट द एंड ऑफ द डे। अग्रीमेंट टू सेल के आपने वो सारे का सारा साथ लगाया, रसीदें साथ लगाई, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लगाया, ये सारे के सारी वो सारी जमा करवाने के बाद ये आपकी एग्जामिनेशन इन चीफ है। इसके बाद क्या होता है, ये बीच में क्रॉस बीच में बार बार दोस्त कह रहे हैं, तो वो हो गया, आपने अपना सारा एविडेंस जमा करवा दिया। तो देन व्हाट हैपन्स इज नोन एज क्रॉस एग्जामिनेशन, कि दूसरा वकील उससे फिर भी उसके ऊपर जरा करेगा या उससे सवाल पूछेगा, और ये सारी चीज़ें वहाँ पे बैठ के जज लिख रहा होता है या लोकल कमीशन हाथ से बैठ के लिख रहा होता है। आपके जो सवालात होंगे
तो आप डिफेंडेंट के अगर आप वकील हैं तो आप इस तरीके के सवाल पूछेंगे कि जिससे ये साबित हो कि वो झूठ बोल रहा है। कि फॉर एग्जांपल वन क्वेश्चन आई विल पुट, आजकल मैं केस वगैरह कर रहा हूँ, करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, अच्छा तुम आप काम क्या करते हैं? जी मैं उसको कहते हैं PHA के अंदर एक माली हूँ। तो 12 करोड़ की प्रॉपर्टी के आपके पास पैसे कहाँ से आए? आप झूठ बोल रहे हैं कि जी आपने 12 करोड़, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का अगर कोई दावा वगैरह हो रहा, या क्या आपको पता है कि जिस बंदे से आप उस बंदे के पास तो पैसे ही नहीं थे। आपको पता है कि मेरा क्लाइंट बीच में एक माली है PHA के अंदर, आप मुआहदा उठा के ले आए कि उसने आपको 15 करोड़ रुपए बीच में लोन के अंदर दिए हैं। क्या आपने ये उसको कहते हैं, और मुख्तलिफ ये जराइम वगैरह सारी की सारी चीज़ें, कि आप कैसे दे सकते हैं, आपने अपने टैक्स में दिखाया ये नहीं, यू ट्राइंग टू बेसिकली डिस्ट्रॉय इस नुक्ता। अगर कोई एडिशनल नुक्ता क्रॉस एग्जामिनेशन में आए तो उसके ऊपर री एग्जामिनेशन भी हो सकती है कि प्लेंटिफ का वकील फिर दोबारा सवालात कर सकता है। अब प्लेंटिफ ने सारे अपने विटनेसेस कर दिए, पेमेंट प्रूफ करने के लिए अलग बंदा उसको कहते हैं द विटनेसेस ऑफ द अग्रीमेंट दोनों अलग आ गए, वो सारे के सारे प्रूफ करके सारी ये चीज़ें चली गई। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर डिफेंडेंट की एविडेंस शुरू हो जाती, और डिफेंडेंट की जो एविडेंस होती है उसके अंदर वही चीज़ होती है, एग्जामिनेशन इन चीफ होती है और फिर इनकी जिरा होती है। अब आपको बता सकते हैं एविडेंस के बाद क्या होगा? दोनों पार्टियों की एविडेंस कंप्लीट होगी तो फिर क्या होगा? एविडेंस के बाद कौन सा स्टेज होगा? इश्यूज फ्रेम हो गए, एविडेंस हो गई, तो फिर क्या होगा? फाइनल आर्ग्यूमेंट्स। बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं। अब समझने की ये ज़रूरत है कि फाइनल आर्ग्यूमेंट्स बंदा के लिए, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में आप क्या फरमाएंगे? फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में आप ये कहेंगे, फॉर एग्जांपल प्लेंटिफ का आर्ग्यूमेंट ये होगा कि पार्टीज एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट, द अग्रीमेंट इज एग्जिबिट A1 which was denied by the defendant, बट हमने उसको साबित किया है एग्जिबिट A1 बाय प्रोड्यूसिंग विटनेस नंबर, ये जो दो थे विटनेसेस वो पेश हुए हैं एज प्लेंटिव विटनेस 2 एंड प्लेंटिव विटनेस 3, और उन्होंने आके ये जुमलों के अंदर ये लिखा है कि जी हाँ हाँ मौजूद थे और ये हाँ हमारे दस्तखत हैं, तो इससे मुआहदा साबित होता है। फिर इसके बाद ये एक स्टेटमेंट आई है और ये चेक्स की कॉपी, और बैंक के बंदे को हमने बुलवाया नहीं, एज कम एंड कन्फर्म्ड एज PW4 के ये वाले पैसे इस अकाउंट से उसके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हुए। सो आपने अपनी पेमेंट साबित कर ली। इस स्टेज के ऊपर बैठ के आप जो लिटिगेशन कर रहे होते हैं, यू हैव टू थिंक अबाउट इट इन रिवर्स एज वेल, कि वॉट यू आर डूइंग अप टिल नाउ आर गैदरिंग ब्रिक्स विद विच आपकी इमारत बीच में इस्टेब्लिश होनी है। So what I am basically trying to explain to you right now is you have to look at the end of the story first, and what is was required for you to set up your building या your case, उसके लिए क्या क्या आपको elements चाहिए। दूसरी पार्टी उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये है कि आप एविडेंस हवा में शौकिया नहीं करवा रहे, आप एविडेंस इसलिए करवा रहे थे कि उस एविडेंस को इस्तेमाल करके आपने एक बिल्डिंग बनानी है। दूसरी पार्टी आपके एविडेंस को तबाह इसलिए कर रही है कि फॉर एग्जांपल अगर वो पेमेंट नहीं साबित होती तो लाइबिलिटी टू पे बैक वाली नहीं आती, एग्रीमेंट अगर साबित हो भी जाए। सो व्हाट यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड इज एंड कीप योर आइज ओपन, यू आर नॉट डूइंग दिस एविडेंस जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, you're not attacking evidence on behalf of the defendant for the sake of it. What you are trying to basically do is you are trying to get the other party की जो केस है उसके अंदर से कोई ना कोई चीज़ करके ताकि उसकी बिल्डिंग वहाँ पे गिर जाए, देयर इज नॉट डिक्री इज नॉट पास्ड इन हिज फेवर। ऑन द अदर हैंड प्लेंटिफ कोशिश ये कर रहा है कि मोटी सी एक दीवार बनाए, मुख्तलिफ फैक्ट्स वगैरह दे के कि अगर कोई चीज़ डैमेज उसमें हो भी जाए तो एट द एंड ऑफ द डे द बिल्डिंग स्टिल स्टैंड्स एंड अ डिक्री इज स्टिल पास्ड इन हिज फेवर। If a witness lies in some material fact, what is his credibility? क्या मतलब भाई, मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई बीच में। अगर कोई एक झूठ बोल रहा है तो वो साबित कोर्ट के सामने होगा तो उसका एविडेंस रिजेक्ट हो जाएगा कि अगर वो झूठ बोल रहा है, अगर नहीं साबित होगा तो उसके एविडेंस के ऊपर रिलाई किया जाएगा। सो वंस अगेन नेगेटिव एविडेंस वगैरह, आई डोंट नो व्हाट यू मीन बाय दैट, व्हाट इज़ नेगेटिव एविडेंस। इशू बेसिकली ये है कि चलें अब फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हो गए, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के बाद क्या होता है?
डिक्री क्या होती है और जजमेंट क्या होती है? कोई जजमेंट कह रहा है, कोई डिक्री कह रहा है, दोनों में फ़र्क क्या है? शॉर्ट ऑर्डर तो नहीं होता, इसे सुप्रीम कोर्ट नहीं है, अमूमन शॉर्ट ऑर्डर तो कभी भी नहीं आता। जजमेंट और डिक्री में फ़र्क क्या है? आसान ज़ुबान के अंदर ये कहेंगे कि डिक्री एक फाइनल डिटर्मिनेशन है जिसके अंदर ये लिखा रहा हाँ इस बंदे ने इसको 16 करोड़ रुपए देने हैं बस, और ये कोर्ट का इसके ऊपर ठप्पा लग गया। इट इज़ एज गुड एज मनी, और नॉट एज गुड एज मनी बट इट इज़ एज गुड एज अ चेक विच नीड्स टू बी इन कैश नाउ थ्रू एग्जीक्यूशन। उसके जजमेंट वो होती है जिसमें रीजंस लिखे जाते हैं कि ये इशू नंबर 1 था, उसमें इसने ये साबित करना था, उस पर ये एविडेंस दिया गया, उस एविडेंस के अंदर इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा, मैं जज इसका ये करता हूँ और इशू नंबर 1 डिसाइड करता हूँ इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, इशू नंबर 2 इसके करता हूँ और एंड में जाके मैं रिलीव कर देता हूँ, या अगर वो डिसएग्री करता है उसमें जजमेंट में उसकी वजूहात लिखी जाती हैं। बट डिक्री इज़ द बेसिक थिंग, इट इज़ द डिक्लेरेशन बाय द कोर्ट के पैसे देने ही देने। उसके बाद पहले तो ये था कि वो कहता है कि देने हैं, देने भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। द पॉइंट ऑफ द ट्रायल वाज टू अराइव एट द स्टेज जहाँ पे एक डिक्री मौजूद है जिस पे कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई देने बनते हैं। उसके बाद जब ये डिक्लेयर हो जाता तो फिर एग्जीक्यूशन का स्टेज आता ऑर्डर 21 CPC के तहत, जिसमें मुख्तलिफ पावर्स हैं जिसको इस्तेमाल करके कोर्ट वो फिर पैसों में कन्वर्ट करवा के आपके क्लाइंट की जेब में पहुंचवा सकता है। So that is the entire point of the civil litigation or the civil process इस जगह के ऊपर। Now as I pointed out मुख्तलिफ नौइयत के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है प्रॉपर्टीज़ के मामलात के ऊपर, सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन हो सकता है, कोई वायलेशन कर रहा है उसके लिए पोजेशन दिलवाने की भी हो सकता है, उनकी एग्जीक्यूशन फ़र्क अंदाज में होती, इनकी एग्जीक्यूशन फ़र्क अंदाज के अंदर होती। सो वो एंड ऑर्डर इन जजमेंट इज डिक्री, भाई डिक्री एक अलहदा होता है, एक सर्टिफिकेट की नौइयत के अंदर होता है, और ऑर्डर इट यू कैन कॉल इट द फाइनल ऑर्डर एज वेल, ये फाइनल जजमेंट है। फाइनल जजमेंट को ऑर्डर इज समथिंग विच इज़ इंटरम के अंदर मुख्तलिफ फ्राम टाइम टू टाइम जो ऑर्डर्स हो रहे होते हैं। फाइनल ऑर्डर इज़ नॉर्मली को नोन एज अ जजमेंट जिसमें रीजंस रिकॉर्ड हुए होते हैं, और एक डिक्री होती है विच इज़ जस्ट उसके अंदर 1-1.5 जुमला लिखा होता है कि इस बंदे ने इसको इतने पैसे देने, क्यों देने, क्या देने, उसके पीछे नहीं जाया जाएगा। उसके पीछे शायद जाया जाएगा, दूसरी पार्टी के पास रेमेडी होती है, अगर कोई इससे नहीं खुश तो जाए अपील करे, जब तक डिक्री कायम है उसको एग्जीक्यूट करके उसको पैसों में कन्वर्ट करवाने की कोशिश की जाएगी और आपके क्लाइंट की जेब में पैसे पहुंचाए जाएंगे। कोर्ट विल एग्जीक्यूट द डिक्री, एग्जीक्यूशन जमा करवाएगी प्लेंटिफ हु वाज फॉर्मली द प्लेंटिफ बट इज़ नाउ नोन एज द डिक्री होल्डर। और जिस बंदे ने, जिस पार्टी ने के ख़िलाफ़ होती है वो पहले डिफेंडेंट था, अब वो जाके हो गया है, यानी क्रिमिनल में होता है पहले अक्यूज्ड होता है फिर कॉन्विक्ट हो जाता है। यहाँ पे जजमेंट डेटर बन जाएगा जैसे दोस्तों ने बीच में कह रहे हैं। सो यू राइट अबाउट दैट। दिस इज़ अ बेसिक ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन टू द वेरियस डिफरेंट स्टेप्स जो कि सारी इसमें होती हैं। नाउ इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस वगैरह, आई होप आई डिडंट कंफ्यूज यू गाइज, बट बात ये most people get confused by using these technical terms. You need to understand from a very logical point of view कि क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या करना है। अब कोई सवाल हैं तो दोस्त कोई पूछे प्लीज़। अब जो पीछे जो आपके मुख्तलिफ सवाल आ रहे थे, आई कैन ट्राई टू आर्ग्यू इट बट ट्राई टू कीप इट जनरल, नॉट वेरी स्पेसिफिक। यार एविडेंस पोर्शन को री एक्सप्लेन करने के लिए यार एक एक करके कर लेते हैं। प्लीज़ री एक्सप्लेन द एविडेंस पोर्शन। एविडेंस पोर्शन वो पोर्शन है कि इश्यूज़ फ्रेम करने के बाद और लोगों को बता देने के बाद यार तुमने ये चीज़ साबित करनी है, तुमने ये चीज़ करनी है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स और अपने बंदों को लेके आते हैं जो कि ये साबित करते हैं कि हाँ भाई इसी तरीके से हुआ था, ये डॉक्यूमेंट है, इतनी पेमेंट हुई थी, इन डॉक्यूमेंट से ये नज़र आ रहा है। उन डॉक्यूमेंट्स को एग्जिबिट करवाते हैं। कोर्ट ओनली लुक्स एट डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ फाइनल आर्ग्यूमेंट्स जो कि एग्जिबिट हुए हैं। अगर मार्क नहीं हुए या कोई डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी पे भी अगर साथ लगा हुआ है, कोर्ट ने अगर एग्जिबिट नहीं किया तो 99% ऑफ द केसेस के अंदर उसको देखा भी नहीं जा सकता। सो आप बारूद या मवाद जमा कर रहे हैं जिसको इस्तेमाल करके आपने एंड की जो जंग होनी है, फाइनल आर्ग्यूमेंट, फाइनल बैटल,
उसकी ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपने करना है। मार्क वो डॉक्यूमेंट होता है अमूमन जिसको कोर्ट जिसके बारे में उसकी एडमिसिबिलिटी या उसको एग्जिबिट ट्रीट करना है और उसको देखना है कि नहीं, कोर्ट बाद में डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट्स के बाद डिसाइड करना है कि ये डॉक्यूमेंट एग्जिबिट होगा कि नहीं होगा, उनको अमूमन मार्क कर दिया जाता है। या फॉर एग्जांपल जिस डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी भी फॉर एग्जांपल अभी मौजूद है, ये गलत तरीका है। अगर उसकी फ़ोटोकॉपी मौजूद है, बाद में ओरिजिनल प्रोड्यूस कर दी जाएगी तो उसको जजेस कई दफ़ा मार्क कर देते हैं। बाद में जब ओरिजिनल आ जाता है तो उस डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट कर दिया जाता है। या फिर अगर किसी के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा कि एडमिसिबल है कि नहीं, वो डॉक्यूमेंट मार्क कर दिया जाता है। बाद में आर्ग्यूमेंट्स के तहत इफ़ यू कैन प्रूव थ्रू वेरियस जजमेंट्स वगैरह कि ये डॉक्यूमेंट एडमिसिबल है और एविडेंस का हिस्सा बनना चाहिए, तो वहाँ पे अलाउ कर दिया जाता है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ आप रूल ऑफ गार्निशी का जो आप बीच में कह रहे हैं, गार्निशिंग ऑफ वेजेस वगैरह का कॉन्सेप्ट तो मुझे मालूम है, जो एक तरीके से आप किसी की फ्यूचर वेजेस को अटैच कर लेते हैं कि वो जो बंदा कमा के आ रहा है तो वो आपके क्लाइंट को एग्जीक्यूशन के अंदर मिलते रहेंगे तनख्वाह, क्योंकि उसने पैसे उसके फेवर में एक डिग्री है। यार देखें, मेरे से पूछा गया कि फॉरेन लॉ ग्रेजुएट अगर किसी ने किया है तो दे आर एट अ ह्यूज डिसएडवांटेज। अमूमन फॉरेन लॉ वाले अनफॉर्चुनेटली पास नहीं करते जुडिशरी के एग्जामिनेशन, बिकॉज आपसे वो टेक्निकल डे टू डे वकालत के मामलात पूछते हैं और आपने वो पढ़ा ही नहीं होता। CRPC, CPC, PPC, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इनके पढ़े बगैर आपका गुजारा नहीं है। आई सफ़र फ्राम द सेम डिस्क्वालिफिकेशन एज वेल। मैंने दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफर्ड से, लिंकन एंड सेंट जॉन्स कॉलेज, ऑक्सफर्ड से, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डिग्रियाँ ख़रीदी हुई हैं, बट CRPC, PPC पढ़ी नहीं हुई थी, इसलिए वकालत वगैरह समझ तो ली है, बाद में पिकअप भी कर ली हुई है थोड़ी बहुत, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल, सो आई डोंट डू क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ, CPC मैंने सिविल कोर्ट में जाके डे टू डे मुकदमे करके, दिन में 12-12 मुकदमे करके सीखे हैं। सो एक्सटर्नल बंदे ने अगर जुडिशरी के एग्ज़ाम के लिए आना है, उसको सिविल कोर्ट में जाके दर्जनों मुकदमे दिन में करने पड़ेंगे और ऐसा चेंबर ज्वाइन करना पड़ेगा जहाँ पे दिन में 20-20 मुकदमे लगे हों। वो हाथ से काम निकलेगा तो उस बंदे को एबिलिटी मिलेगी कि वो आगे जाके कर सके। और देखें, आप इसलिए जाते हैं कि चूँकि आपने वो पढ़ी नहीं हुई CRPC, PPC वगैरह और ये सारी की सारी, आप वो 20 मुकदमे पढ़ेंगे तो 20 रिटन स्टेटमेंट देखेंगे, 20 स्टेजेस पे मुकदमे होंगे, कोई एविडेंस पे होगा, कोई इशू पे होगा, आप 20 ऑर्डर शीट्स देखेंगे, आप 20 जजमेंट्स देखेंगे, आप 20 प्लेंट्स देखेंगे, एग्जिबिट्स देखेंगे, तो एक ही डोज में एक दिन में आप 20 चीज़ें सीख लेंगे। और जबकि अगर आप किताब में बैठ के पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको समझ ही नहीं आएगी। आज की जो गुफ्तगू कर रहे थे और जो किताबें भी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, इट इज़ वाइटली इंपॉर्टेंट कि यू गाइज गो एंड सी द एक्चुअल फाइल्स ऑफ सिविल के कोर्ट केसेस जो आपके चैम्बर्स वगैरह के अंदर मौजूद हैं, और शुरू से एंड तक वो डॉक्यूमेंट्स देखें, हाथ से खोल के देखें, फॉर्म्स खोल के देखिए जो साथ लगने हैं, फ़र्द तालिका देखें, फ़र्द पता देखिए, स्टे एप्लीकेशन कैसे होती है वो देखें, वकालतनामा गौर से आंखें खोल के पढ़ें, उसके अंदर क्या क्या टर्म्स वगैरह लिखी हुई हैं। कैंसलेशन ऑफ प्लेंट का तो मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। रिटर्न ऑफ प्लेंट और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का है ऑर्डर 7 रूल 10 के अंदर। अगर अगर इसको कहते हैं कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं मौजूद है तो वहाँ पे रिटर्न कर दी जाती है प्लेंट। और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एज इट स्टैंड्स, अगर फॉर रीजंस ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर जो लिखे हुए हैं वो अगर अप्लाई करते हैं, टाइम बार्ड है या कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, बैंकिंग का मुकदमा सिविल कोर्ट में जमा करवा दिया हो तो 7-10 के अंदर भी बीच में उठ सकता है। यार ये जो आप बहुत ही टेक्निकल कर रहे हैं वो आप बेशक मेरे से अलग इसके ऊपर गुफ्तगू कर लें। जनरल अगर कि RFA के अंदर हाई कोर्ट के अंदर अगर किया है अमाउंट इन सूट इन सेकंड अपील एग्जॉस्टेड, आपके सवाल का मुझे समझ नहीं आई, लेकिन दैट इज़ टू टेक्निकल, अलग बात कीजिएगा उसके ऊपर। और कोई सवाल? ये एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स के मुताबिक
क्वाइट अ फ्यू ऑफ दी सवाल, उनके जवाब मैं आपको ख़ुद भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं मैं एक आपको वैसे कहानी सुना देता हूँ कि मैं वालिद साहब के भी मेरे वकील थे और काफ़ी बड़े वकील थे। उनसे ज़िंदगी के अंदर जब भी मैंने कोई सवाल किया तो उन्होंने जवाब के अंदर उन्होंने मुझे ये कहा, उन्होंने हमेशा ये फरमाया, थोड़ा सा करख्त अंदाज में कहा कि तेरी अक्खां हैगियां थे, आप जाके क्यों नहीं देखता। आप तुम सारे के सारे जो दोस्त हैं आपके, फॉर एग्जांपल एक्स पार्टी ऑर्डर या डिक्री के ख़िलाफ़ क्या रेमेडी मौजूद है मैं आपको बता तो सकता हूँ, CPC में मौजूद है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा। जाइए ख़ुद किताब खोल के थोड़ा सा कर लीजिए, इतना बेसिक क्वेश्चन है कि आपको ख़ुद पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि किताब खोलने के लिए आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किताब खोलनी चाहिए, उसके अंदर से 15 और चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। कामयाब वकील पूछ रहे हैं शेर जान साहब क्या मतलब है। चाहिए आपके दोस्त ने जवाब दे दिया, बट बात यह है कि आपके दोस्त के नंबर बन गए, आपके कोई नंबर नहीं टंगे और ना आपको पता चला कि कहाँ से जाके आपने इसका जवाब देखना है। यार जब तक आप CPC नहीं करेंगे ना, बिकॉज बात ये है कि, और मेरे वक्त जैसे मैं आपको बता रहा था, वालिद साहब ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा रहम किया कि जब भी मैंने उनसे मदद मांगी उन्होंने कहा जा आप कर और मेरी भी फ़लाँ चीज़ देख ले, बिकॉज उन्होंने मुझे एबिलिटी दी टू कम अप विद आंसर्स माई सेल्फ। इशू ये है जब सुप्रीम कोर्ट सिविल कोर्ट के अंदर आप आर्ग्यू कर रहे होंगे तो ना आपके अब्बा जी साथ खड़े होंगे, ना मेरे अब्बा जी कभी खड़े हुए हैं वगैरह सारे के सारे, और ना आप ये कह सकते हैं कि मैं घर ज़रा कॉल करके अब्बू से पूछ के बताऊँगा। ऑल ऑफ दिस स्टफ, ना किसी के पास कोई टीका है कि जो आपको लगा के आपके अंदर, ना मेरे पास मौजूद है। ये लेक्चर्स में मैं थोड़ी बहुत तो आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ, बट it is for you to open the books and for you to look at the documents, otherwise you won't get anywhere. So advocacy की skills यार देखो improve करने का बहुत आसान तरीका है, और improve किए जा सकते हैं, because I was probably the worst advocate I have ever come across। मेरी टांगें कामती थी, मेरे से 2 लफ्ज़ नहीं बोले जाते थे, पतली सी मेरी आवाज़ है और मेरे से लिटरली मैं कांप रहा होता था। बार के अंदर भी मैं जब था वहाँ कर रहा था तो मेरे 5 जुमले मेरे से नहीं वहाँ पे बोले जाते थे टेंशन के मुताबिक। द वे यू इम्प्रूव योर एडवोकेसी स्किल्स इज़ बाय डूइंग इट, बोल के। द वे यू इम्प्रूव, अगर आपकी कॉन्फिडेंस की कमी है, यू इम्प्रूव योर सेल्फ बाय प्रिपेयरिंग। द वे यू इम्प्रूव कि जी पैनिक आप नहीं करेंगे एक जज के सामने, इज़ बाय एंटिसिपेटिंग कि जज आपसे क्या पूछ सकता है। अगर मेरा कल मुकदमा लगा हुआ ना तो मैं सारी रात बीच में सोचता रहूँगा, ये सवाल करेगा तो ये कहूँगा, ये सवाल करेगा तो ये कहूँगा। ये एक्सपीरियंस से चीज़ें आती हैं, बट एडवोकेसी का इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स नॉट अ फिल्म। व्हाट यू नीड टू रियलाइज इज, इसमें कोई कॉन्फिडेंस का कोई सिलसिला ही नहीं है यार। उधर जाके खड़े होना और वहाँ पे चीज़ में बात करनी है, जोन आउट एवरीवन एल्स हु स्टैंडिंग देयर एंड यू जस्ट टॉक टू द जज कि सर ये डॉक्यूमेंट है, ये है। उर्दू में बोलना उर्दू में बोलो, अंग्रेज़ी में नहीं आती तो उर्दू के अंदर बोल के दिखा दो कि यार ये डॉक्यूमेंट है सर, इसके मुताबिक ये बनता है और ये है। अगर आपने तैयारी की हुई है, अगर आपके पास बारूद असला मौजूद है जिसको जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आपके फेवर के अंदर है, तो जज आपके फेवर में डिसाइड कर देगा। एडवोकेसी का लोगों का ये मोहम्मद अली वो जो एक्टर था वो वाला नहीं है कि जज साहब वहाँ पे खड़े होकर कटहरे में या ये तकरीरें वगैरह कर रहे हैं, वो करना ही नहीं होता। Advocacy is about talking to the person and trying to convince him through written advocacy, यानी आपने प्लेंट अगर अच्छी बनाई हुई है, जजमेंट साथ है, एविडेंस रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, सारा एविडेंस के जरिए आपने प्रॉपरली से केस सेट कर लिया हो, तो देयर इज नो रॉकेट साइंस टू इट। यू हैव लिव्ड विद द मुकदमा एंड इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू गेट अप देयर एंड टॉक अबाउट इट। सो आप उसके मुताबिक मेरी आप दोस्तों को सजेशन यही है कि एडवोकेसी इज जस्ट हैपन्स बाय डूइंग इट। अब ये चीज़ आपकी देखो, एजुकेशनल सिस्टम इतना मेस्ड अप है कि ना लड़के से बुलवाते हैं, ना लिखवाते हैं, ना पढ़वाते हैं, ना ज़्यादा किताबें, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप प्रोफेशन के अंदर जैसे ही बीच में ड्रॉप इन होंगे तो आप फर बोलना भी शुरू कर देंगे, लिखना भी शुरू कर देंगे। ये वो होता नहीं, चंद बंदों के अंदर होता है नेचुरल स्केलेबिलिटी, हाजिर दिमागी होती है, बोल लेते हैं। बट आपको जब तक आप बोलेंगे नहीं, मैंने फॉर एग्जांपल मेरा एज आई से कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वगैरह है, तो मैं कोशिश करता हूँ कोर्ट में मुकदमे से पहले किसी से गप लगा रहा हूँ या मेरा मुंह कम से कम चलना शुरू हो जाए, दिमाग अपना चलाने के लिए, अंग्रेज़ी में चलवाने के लिए। गाड़ी के अंदर जब बैठा होता हूँ तो मैं क्रॉसवर्ड कर रहा होता हूँ, रोज़ मैं फेसबुक पे अपलोड भी करता हूँ ताकि अंग्रेज़ी बीच में चलनी शुरू हो जाए। मेरा स्किल सेट कुछ इस तरीके से, कॉन्फिडेंस मेरा बीच में ज़ीरो था, तो यू कैन टू गो हैड एंड डू। मेरी तरफ से तुम आप ड्रामे करने शुरू कर दो, आप गाने शुरू कर दो, जिस चीज़ से लोगों के सामने परफॉर्म वगैरह करो तो आपका कॉन्फिडेंस उधर से आ जाएगा, ट्रांसलेट्स ओवर हेयर एज वेल। जज के सामने गाने शुरू कर दो वगैरह, बट मैं ऑल आई एम सेइंग इज कि ड्रामे करो, जो चीज़ करो, बोलो, फर बोलो।
अगर तुम अपने 15 दोस्तों के अंदर बैठ के तुम गुफ्तगू के अंदर अगर नहीं बोलते तो एडवोकेट खेते मिट्टी, जब जज का बीच में जाके वो आपके ऊपर प्रेशर वगैरह आएगा तो आप वहाँ पे बोलना शुरू करें। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अगर मेरे जैसे भी बीच में वॉल फ्लावर हो और अगर शर्मीले हो या अगर वैसे शर्मीला खैर अगर के डरू हो वगैरह सारे का सारा, तो आई चेंज माई सेल्फ। और अगर मैं कर सकता हूँ, मैंने आपको कह रहा हूँ मैं खुद प्रूफ हूँ, तो आप सब मेरे से अभी भी प्रॉब्लम मीलों आगे हो गए जिस स्टेज के ऊपर मैं जो इस उम्र के अंदर था। सो बट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बोलने की कोशिश करोगे तो बोलोगे, अदरवाइज क्या वहाँ पे जाके जज के सामने जो who's out there और try to put pressure on yourself as well, try to come up with the answer yourself। जज आराम से नहीं बैठा होता, जज गोली मारता है, गुस्सा करता है, प्रॉपरली उसको आपने कैसे हैंडल करना, दैट इज व्हाट एडवोकेसी इज। और कोई सवाल? आई कैन गो ऑन एंड ऑन। बाय द वे मेरे यूट्यूब के ऊपर अगर आप वीडियोस वगैरह देखें, इन हर चीज़ के ऊपर जो आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैंने 2-2 घंटे के अलग-अलग वीडियोस भी बनाए हुए हैं, सो यू कैन गेट अ लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम देयर एज वेल। सो एक वेबसाइट मैं बल्कि लिख के दे रहा हूँ, इस पे देख लीजिएगा। लॉट ऑफ माई लेक्चर्स आर हेयर। मेरे यूट्यूब के ऊपर जो है मेरा चैनल फॉलो दैट, उसमें बेशुमार वीडियोज़ हैं। पंजाब बार काउंसिल के पेज के ऊपर आपके लिए बार वोकेशनल कोर्स और ये सारी की सारी ट्रेनिंग्स के अलहदा वीडियोस भी बनाए हुए हैं। लॉग एड से लेके आपका ऑल द वे अप टू के क्लाइंट कैसे ड्राफ्ट करते हैं, सारे टेक्निकल चीज़ें उनके ऊपर वो आपको विल फाइंड अ लॉट ऑफ स्टफ। और कोई सवाल यार? रेकमेंड प्रैक्टिसिंग अब्रॉड फॉर एक्सटर्नल स्टूडेंट्स। मैडम आप सारा देखिए, अगर तो यू आर वेल कनेक्टेड, आपने अगर अमेरिका इंग्लैंड के अंदर नौकरी करनी है तो वो आपकी मर्जी। आई हैव फाउंड कि वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अमेरिका के अंदर जितने दोस्त यार हैं मेरे जो साथ बार करके वहाँ पे प्रैक्टिस एक्सटर्नल के बाद वहाँ पे गए हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन 90% ने वकालत छोड़ दी है, या वो सुबह 6 बजे उठ के जाते हैं काम पे, रोज़ 8 बजे वापस आते हैं और वीकेंड का इंतज़ार कर रहे होते हैं और वीकेंड के ऊपर बीवी बच्चों से मिलते हैं। देयर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इज़ नॉट ऑल दैट गुड। बट देन अगेन अभी जो समवन हु स्टडीड विद मी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ एज वेल, अमेरिका के अंदर जो पहला मुसलमान सुपीरियर कोर्ट का जज जो नॉमिनेट अभी रिसेंटली बाइडन किया, अदील मंगी, वो मेरे साथ ही, उसने कराची से लड़का था, उसने काम वगैरह किया है एंड ही इज़ मैनेज टू गेट वेरी फार। न्यूयॉर्क में वो बेशुमार कमाता है, बट वंस अगेन जब उसकी नॉमिनेशन आई है तो प्रॉबली अभी तक पिछले 8 महीने से उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है और उसको वहाँ पे जज नहीं बनने दे रहे। सो देर इज़ अ ग्लास सीलिंग फॉर देसीज अब्रॉड एज वेल। मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर क्या आप किस तरीके से मैनेज करते हैं वो देख लीजिए। आई केम बैक, माई ब्रदर एक्चुअली इज़ प्रैक्टिसिंग एट अ वेरी हाई लेवल एट ओमान, मस्कत में। अपनी फर्म भी उसकी बन गई हुई, अर्न्स 10 times मोर देन आई डू आई थिंक। मी ऑन द अदर हैंड आई लव वकालत हेयर पाकिस्तान के अंदर। आई चोज़ टू कम बैक बाय बेशुमार पैसे और बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही थी, वालदैन यहाँ पे थे। आई वॉन्टेड टू कम बैक टू पाकिस्तान एंड कॉन्ट्रीब्यूट। सो क्या आप बाहर जाके काम करना चाहिए कि नहीं? वेयर एवर यू फाइंड वैल्यू इन योर लाइफ, दैट इज़ वेयर यू शुड गो। बट अगर आप पाकिस्तान से हैं और आपने ये किया हुआ और ये बाहर की डिग्रियाँ उठा भी ली हैं, मेरी तरह अगर आपने ले भी ली हुई, तो उनको यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट करें। आई मीन आपका स्किल सेट एक्सटर्नल लॉ के अंदर ज़्यादा बेहतर होता है, बाय द वे मेहनत करने की ज़्यादा एबिलिटी होती है, अंग्रेज़ी में ज़्यादा होती है। लेकिन आप क्या करेंगे जब एक सबसे बड़ी आप दोस्तों को मसला ये पड़ेगा कि FIR भी उर्दू में, ऑर्डर शीट भी उर्दू में, प्लेंट भी उर्दू में, उसको क्या कहते हैं, फ़र्द भी उर्दू के अंदर, सारे के सारे। और वो अगर आप नहीं पढ़ेंगे और एविडेंस एक एक लफ्ज़ उर्दू के अंदर उसने लिखा हुआ है, तो अगर आप वो पढ़ना अपने आप को आप यहाँ पे ढालेंगे नहीं। और मैं आपके साथ ज़्यादातर वक्त गुफ्तगू उर्दू में ही कर रहा था। मैं बैरिस्टर मोहम्मद अहमद कयूम, आई कुड हैव टॉक टू यू इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड और इस अंदाज में, बट दिस इज़ उर्दू में आपसे गुफ्तगू इसीलिए कर रहा हूँ बार बार कि मैंने अपने आप को एक्चुअली ढाला। मेरे से ज़्यादा आप शायद बर्गर ना हो, लेकिन और मेरी बैकग्राउंड वगैरह सारी की सारी बाहर है, एचसन ये वो सारी की सारी बड़े रीच स्टाइल के अंदर। मगर अगर आपने यहाँ पे सक्सीड करना है तो आपको अपने आप को इस चीज़ में ढालना पड़ेगा और आपको ये काम अपने हाथ से निकालना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो यू विल बी अ मिसफिट। मेरे साथ 18 बीच में, अगर 12 बीच में बार करके आए थे लोग वापस पाकिस्तान के अंदर, तो आई थिंक मे बी 4 of us आर ओनली प्रैक्टिसिंग, 8 of them आर आउट ऑफ द प्रोफेशन, या वो चेम्बर वर्क वगैरह कर रहे हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू गाइज
ट्राई टू जो सिस्टम है टूटा हुआ है, ख़राब है, गंदा है, गर्मी है, जो मर्जी है, आपने इधर एग्जिस्ट करना, या छोड़ के आप चले जाएं कहीं और, या फिर इसके अंदर अपनी इंटेग्रिटी 2 नंबरी वगैरह के तहत अपने आप को मत ढालिए, बिकॉज यू आर द शाइनिंग गाइज, यूर द गाइज जिनसे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप जस्ट द फैक्ट कि आप यहाँ पे मौजूद हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं, शोज़ दैट यू एक्चुअली वांट टू बी अ जेन्युइन लॉयर, राइट? तो कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह ना करें, इस सिस्टम को भी आपने ही बीच में सारे दोस्तों ने ठीक करना, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी अगर मेरी जैसी बीच में बंदा जगह बना सकता है शाय बैक करके वगैरह, तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं. एज आई कीप सेइंग, यू गाइज आर डेफिनेटली, आई एम क्वाइट श्योर, माइल्स बेटर देन व्हाट आई वाज. आई हैड सम एडवांटेजेस. वालिद जज थे, दादा रह चुके, तीसरी पुश्त का वकील है, चलता हुआ चैम्बर मिल गया, क्लाइंट्स भी मिल गए, बट मुशक्क़त के ज़रिए सीखा है. यार अभी मेरे पास ये एक दाएं हाथ के ऊपर अगर आप देखें यहाँ पे, तो मेरे ऑलरेडी 10-12 इसको कहते हैं 8-9 इंटर्न्स तो बैठे ही हुए हैं. आपने भी अगर और करना है तो कोई भी आ जाए, यहाँ पे मैं सारे बंदों को खुला खाता है, यहाँ पे चैम्बर में जगह भी काफ़ी है, कर लेते हैं वगैरह, बिकॉज मेरे लिए तो आप फ्री स्लेव लेबर हैं. सो अच्छी बात है, आप आते हैं तो अंग्रेजी तो आपकी अच्छी होगी तो 2 हाथ ही आपसे लिखवा लूँगा, बाकी आप मुझे परफॉर्म करते हुए देखिएगा. मोहम्मद अहमद कही हूँ. सो इंटर्नशिप के अंदर यही है, जस्ट ब्रिंग अ CV, सो लॉन्ग एज इट्स माई ऑब्लिगेशन वगैरह. आई ट्राई टू गेट पीपल टू एक्सपीरियंस द लीगल प्रोफेशन. और इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे अगर आप ऑलरेडी आपको लाइसेंस वगैरह नहीं मिला हुआ, especially during the last 2 years of your law school. वाइटली इंपॉर्टेंट कि इंटर्नशिप करें, बिकॉज इसी से आपको समझ आएगी कि प्रोसेस चलता कैसे है. आपकी अपनी पढ़ाई में भी बड़ा फ़ायदा होगा, और दूसरा बाय द टाइम आप नौकरी के लिए आएंगे तो आपकी 2-3 इंटर्नशिप्स करके आपको पता चल गया होगा कि फ़लाँ बंदे के पास जाना है, फ़लाँ जगह पे मेरी बनती है, और आपको वो हाथों हाथ ले भी सकते हैं इफ़ यू वर एनी गुड. अदरवाइज डिग्री हासिल करने के बाद गवाचे हुए बंदे की तरह आप बीच में घूम के, अबू ने फ़लाँ जगह पे बिठा दिया या चाचू ने फ़लाँ जगह के ऊपर बीच में बिठा दिया, और गलत डायरेक्शन के अंदर वकालत चली गई, 3 साल बीच में ज़ाया कर लिए कॉर्पोरेट चेम्बर के अंदर, और जब बाहर निकले तो 0 मुकदमा भी नहीं करना आता, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. वन वीडियो यू गाइज, 2-3 वीडियोज़ है मेरे चैनल पे, यू गाइज मस्ट चेक आउट इज़ हाउ टू प्लान द लास्ट ईयर्स ऑफ योर करियर इन द लॉ स्कूल एंड द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ योर वकालत. किस नौइयत के चेम्बर के अंदर जाना है, किस नौइयत की वकालत करनी है, कहाँ पे इंटर्नशिप करनी चाहिए, वालिद अगर वकील रह चुके हुए हैं तो किस तरीके से क्या आपका करियर आर्क होना चाहिए, पॉलिटिकल चैम्बर्स में जाना चाहिए कि नहीं, कॉर्पोरेट चैम्बर्स में जाना चाहिए, अगर आपने एक्सटर्नल डिग्री की हुई है तो आपको किस तरीके से अपने आप को ढालना है. ये चीज़ें आप ज़रूर प्लीज़ देख लीजिए. मेरा एड्रेस सर, मैं आपको ईमेल एड्रेस दे देता हूँ, उसके ऊपर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरा एड्रेस इज़, अगर आपका ह्यूमन एसोसिएट्स आप ऑनलाइन अगर आप देखें तो ये आपको उसकी पिन भी मिल जाएगी गूगल के अंदर. आई डोंट पे माई इंटर्न्स एट ऑल, वो आपकी बीच पे उसके अंदर मर्जी है. आई अनटिल अनलेस यू हैव अ लाइसेंस, आई थिंक इट्स इनअप्रोप्रिएट आपको वैसे करने के लिए इंटर्न्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं. अगर आपने डिग्री कंप्लीट कर ली हुई फिर देखा जाएगा. इंटर्नशिप के अंदर तो मैं आपके साथ वक्त लगा रहा हूँ. यार देखो, आप पूछ रहे हैं मेरे से मूट कॉन्टेस्ट वगैरह फॉरेन लॉ ग्रेजुएट्स को करेगा, यूके एंड पाकिस्तानी लॉ वगैरह. देखो, मूट इज़ इंटायरली डिफरेंट, और एक दफ़ा कर देने से नहीं हो जाता. मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि ज़ुबान की गिरा खोलनी चाहिए, और वो बार बार बोलने से. मूट कॉन्टेस्ट में मैंने देखा ये है कि 80 लोगों की क्लास होती है, उसके अंदर 2 या 3 शहजादे या शहजादियाँ होती हैं जो कि उसमें पार्टिसिपेट मूट में कर रहे होते हैं, बाकी देख रहे होते हैं उनको परफॉर्म करते हुए. जब तक खुद नहीं बोलना शुरू करोगे और पार्टिसिपेट नहीं करोगे, वो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू. दूसरी फंडामेंटल प्रॉब्लम मूट के अंदर, ये जो आप कह रहे हैं लॉ मूट में, ये आती है कि आपको जो टास्क सेट की जाती हैं उनका दूर दूर से आपकी प्रॉपर वकालत से कोई ताल्लुक होता ही नहीं है. लम्स के अंदर एक उन्होंने, आई स्टिल रिमेंबर, एक उन्होंने ये बनाया हुआ था कि प्लानट फलां के साथ लड़ाई है, और वहाँ पे एक नीले रंग के बंदे होते हैं, वहाँ पर दूसरी जगह के ऊपर पीले रंग के बंदे होते हैं, और उनके फंडामेंटल राइट्स के और ये और वो. आई मीन इट्स हाईली अनलाइकली कि अगले 15 सालों के अंदर आपने प्लानट पीले या प्लानट नीले के बंदों का आपने कोई उनके फंडामेंटल राइट्स का मुकदमा करना है.
हाउएवर अगर आपको लॉ मूड्स के अंदर ये प्रॉब्लम्स दी जा रही हैं कि मियाँ बीवी की डाइवोर्स है, आप कहाँ पे बीच में खुला के लिए दावा आप कहाँ पे बीच में जमा करवाएंगे और उसके ऊपर आप क्या आर्ग्यू करेंगे, या ये एविडेंस है इस पे आर्ग्यू करें, जो कि आपको अगर आपने देखनी है ना ट्रेनिंग्स वगैरह, वो बार वोकेशनल कोर्स की जो हमारी बीच में वीडियोस अपलोडेड है ना, हम प्रैक्टिकल लोगों को FIR पकड़ा देते हैं, एविडेंस पकड़ा देते हैं और फिर कहते हैं बहस करो, मेडिको लीगल रिपोर्ट्स कर देते हैं, ये मर्डर हुआ एक्चुअल केसों के, वो आप करेंगे, उसके ऊपर अगर आप काम करते हैं तो हाँ आपको होगा। बट ये जो बर्गर टाइप की चीज़ें होती हैं ना, मूड्स वगैरह इस तरीके से, ये चश्के हैं, इनका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं ये करने के लिए। इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और मैं आपको ये कह रहा हूँ, एक अपना को किबला दुरुस्त कर लें। एवरीथिंग सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ ज्वाइन करना इज़ अ वेस्ट ऑफ योर टाइम, हाई कोर्ट के वकील के साथ ज्वाइन करना इज़ अ वेस्ट ऑफ योर टाइम। What you need to learn as soon as possible is the type of cases, how to do the type of cases from which you can earn in the first 2 years as soon as you leave that gentleman. अगर आपने बैठ के मलिक कयूम साहब के साथ मिलके सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस कर लिए और चीफ जस्टिस साहब के कोर्ट में आप पीछे उनकी फाइल पकड़ के खड़े नज़र आ रहे हैं और आपने यहाँ जाके मेरी तरफ से सुप्रीम कोर्ट की क्लार्कशिप भी कर लिया, आपने वक्त ज़ाया किया। बिकॉज फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट डजंट अर्न फॉर यू। आई मीन क्लार्क्स को थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, आपको अगर सादे मुकदमे करने नहीं आते, योर एंटायर फोकस नीड्स टू बी वेरी 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 सेल्फिश कि मैंने इस बंदे को छोड़ के जाना है और इसको जब मैं छोड़ के जाऊंगा तो मुझे या इसके पास होते हुए जो मुझे ज़ाती तौर पर लाइसेंस के मिलने के बाद मुकदमे आएंगे, उनसे मैंने कमाई करनी है। आपने भी बात की कि जी मैं क्या पे करता हूँ, कितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10,000 दे दूंगा या 15,000 दे दूंगा। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल महीने का आप अगर जाके, मैं बैरिस्टर था और जब मैंने वकालत शुरू की तो मुझे 8 महीने के बाद सैयद अली ज़फ़र साहब ने मांडवी वाले ज़फ़र में 18,000 रुपये देने शुरू किए थे एट दैट पर्टिकुलर टाइम, विच वॉज नॉट अ लॉट ऑफ मनी। बट हाउएवर अगर आप खुद एक मुकदमा करके 2 मुकदमे करके 50,000 ले लेते हैं, आपकी लर्निंग इतनी होगी और आपकी अर्निंग 3 या 4 गुना बीच में ज़्यादा होगी। योर फोकस नीड्स टू बी अबाउट सेल्फिशली गेटिंग क्लाइंट्स एंड डूइंग द वर्क। ये भी अपने जहन से निकाल दें कि वो जी मुझे काम नहीं करना आता, किसी को भी नहीं आता। यू लर्न एज यू गो अलॉन्ग। और उसके लिए सेकंड जनरेशनल लॉयर्स को मैं कहूँगा कि सबसे पहले जल्दी आप तैयारी करें दूसरा काम वगैरह करने के लिए। उसके लिए अलहदा मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि आप सेकंड जनरेशनल लॉयर को ये कहूँगा कि एंड में आपने अपने वालिद साहब के पास ही जाना है। और ये अगर वालिद साहब से नहीं भी बनती ना, तो उनके पास पकी पकाई खीर है, उनके पास चेम्बर है, उनके पास क्लाइंट्स हैं। वही चीज़ अलहदा मस्जिद बनाने का कोई फ़ायदा नहीं कि जी मेरी अबू से बनती नहीं, ज़बरदस्ती वापस जाएं और वहाँ पे जाके उनसे काम वगैरह मिलेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे काम हासिल करना बड़ा मुश्किल काम है। आपको अगर आपका ये ख्याल है कि अबू क्रिमिनल करते हैं, मैं सिविल करना शुरू कर दूँगा, इट इज़ अ भारी वर्ड, क्वाइट एन इडियोटिक डिसीजन फॉर यू टू एक्चुअली टेक। बात ये है यू उनकी जो चीज़ है, ट्रेडिशन बनती भी नहीं है, नहीं भी बनती, कुछ भी नहीं होता, यू स्टिल हैव टू गो अहेड एंड फॉलो थ्रू ऑन इट। फीमेल लॉयर्स के लिए एडवाइस ये है कि स्टफ़ इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट यहाँ पे कराची के अंदर काफ़ी मुश्किल है। आई वॉन्ट माई डॉटर टू कम इन टू वकालत एज वेल। इट्स डिफ़िकल्ट बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। females can excel here in Pakistan quite a lot as well. कनेट से ख़ास तौर पे जो लड़कियाँ आजकल आ रही हैं, वन ऑफ माई एसोसिएट स्टॉप्ड जुडिशरी का एग्ज़ाम पिछली दफ़ा पूरे पंजाब के अंदर से, शी केम फर्स्ट, कनेट से पढ़ के आई हुई थी, कोई बड़ी बड़ी डिग्रियां वगैरह बाहर से नहीं उन्होंने पकड़ी हुई थी। फ़ीमेल अगर पोटेंशली काम करती हैं मेहनत के साथ तो दे कैन स्टिल वर्क। मेरी सिविल कोर्ट की जो इंचार्ज हैं वो एक मैडम हैं और उनको मैं शायद इब्तदा के अंदर बीच में किसी के कहने के ऊपर मैंने रखा, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत की। जेंडर रियली डजंट कम इन टू इट। अगर आप मेहनत करके आप काम करते हैं, अगर आप फीमेल हैं, तो मुझे मसला पड़ा होता है कि जिस दिन मैडम हिना मेरे दफ्तर के अंदर नहीं होती हैं, छुट्टी वगैरह के ऊपर होती हैं, तो मेरे से मुकदमे नहीं सिविल कोर्ट के हैंडल हो रहे होते। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर फीमेल्स इन दिस प्रोफेशन एज वेल। मसले भी बहुत ज़्यादा हैं बट थिंग्स आर डेफिनेटली गेटिंग बेटर। और आई थिंक मैडम आसमा जहांगीर साहिबा जो यहाँ पे थी, मैंने रखी थी इसलिए, अगर मैडम आसमा जहांगीर कर सकती हैं, मरहूम मेरी लीडर थी, तो आप क्यों नहीं कर सकते यार? इज़ इट बेटर टू गिव CSS एग्ज़ाम आफ्टर LLB और जुडिशरी एग्ज़ाम? भाई अगर वकालत करनी है वकालत करो। आई एम ओनली मेरे वालिद साहब मुझे CSS में भी भेजना चाहते थे, नहीं। जुडिशरी का एग्ज़ाम नहीं।
अगर आप कमिटेड नहीं हो वकालत के साथ तो फिर मेहरबानी करके आपकी वकालत कोई नहीं चलने लगी। ये नहीं होगा कि 2 साल या 3 साल आपने जुडिशरी के अंदर लगा लिए, नहीं पास हुए तो इधर हो गया, तो आपका ये हुआ, तो आपको आपके इंतज़ार में लोग या क्लाइंट्स नहीं बीच में बैठे होंगे, फिर आपकी नहीं बीच में वकालत चलनी। यू नीड टू बी क्लियर अबाउट ये करके। ये 24 घंटे का, बल्कि 24 घंटे में से 28 घंटा मेरा दिमाग ऑन हुआ होता है वकालत के बारे में। बीवी बच्चे नाराज़ होते हैं, सारे के सारे होते हैं, इट टेक्स ओवर योर लाइफ। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ वकालत है तो फिर वकालत ही है, ना जुडिशरी है ना CSS है। इफ़ यू आर नॉट कमिटेड टू दिस प्रोफेशन, जाओ कोई और चीज़ कर लो, बिकॉज यू विल फ्रैंकली नॉट सक्सीड। बिकॉज ये सुबह दोपहर शाम का काम करने वाली बात है। आपके ख्याल में आप CSS के इम्तिहान के लिए बैठे हुए हैं और तैयारियां वगैरह बीच में कर रहे हैं, क्लाइंट बेस कब आएगी? आपसे तो जो आपके क्लास फेलोज हों वो मीलों आगे निकल गए होंगे, कमाई वगैरह क्लाइंट्स उनके पास आ गए होंगे, तो आप CSS में फ़ेल होके जब आएंगे, खुदा ना खास्ता मेरे पास, तो मैं क्या आपको 6 साल आपके वैसे लग गए होंगे, आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं आपको 30-35 हज़ार रुपये करूँ, आपको एक लफ्ज़ नहीं लिखना आता या वकालत आपने की नहीं हुई, तो यूर वेस्ट ऑफ माई टाइम एंड स्पेस एज वेल। बैठने में आपको यहाँ पे दे दूँगा, बट वाई वुड आई पे यू? सो यू नीड टू टेक अ लुक एट इट। मैडम आसमा की किताब नहीं थी यार, उनका कार्ड था ये बीच में, मैडम आसमा जहांगीर का। मैडम आसमा की वैसे 2-3 किताबें उन्होंने लिखी हुई हैं मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स चीज़ों वगैरह के ऊपर। उसका पैम्फलेट था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लिया लीगल एडवाइस, देखो अगर कोई बंदा लीगल एडवाइज़र, मेरे ख्याल में जो वेले वकील होते हैं ना, वो अमूमन ज़्यादा माजरत के साथ लीगल एडवाइज़र्स बनते हैं। बात ये है शुगल ही सारे का सारा मुकदमे करने का, और कमाई भी उसी चीज़ के लिए मिलते हैं। अगर तो तुम नौकरी करनी है तो जाओ नौकरी करो। लीगल एडवाइजर्स तो वो होते हैं जो एक फिक्स के ऊपर होते हैं, कोर्ट वो जाते नहीं हैं, और जो सबसे ज़्यादा शुगल की चीज़ होती है, एयर कंडीशनर कमरे में बैठे होते हैं, पैसे वगैरह मिलते हैं, तनख्वाहदार होते हैं। हाँ, बैंक्स में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, बट टू माई माइंड चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत कम है वहाँ पे, बहुत लिमिटेड है। इफ़ यू आर वेल कनेक्टेड, कोका कोला में कोई जानने वाले अंकल हैं, वो आपको लीगल एडवाइज़र लगा लेते हैं, तो आपकी अच्छी वर्थ है। मगर अगर आपको उन्होंने एक बीच में ZTBL के अंदर आपने लीगल ऑफिसर लगना है और आपको बीच में मिलने लाख रुपए से कम करने हैं, तो बीवी बच्चों का कहाँ से खर्चा होना है आपका उसके अंदर। टैक्स के बारे में, टैक्स मैंने ये कहा है कि टैक्स इज़ अ वेरी वेरी लिमिटेड फील्ड, ये वो आपको सारे इन वीडियोज़ में नज़र आएगा। टैक्स का काम मार्केट के अंदर 2 से 5% है सिर्फ। सो अगर 2 से 5% है, तो क्या आपको बाकी जो 98 से 95% काम है वो हासिल करने में कोई मसला है? प्लस इट्स वेरी वेरी एक्सक्लूसिव एज वेल। कॉर्पोरेट वाली चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बीच में लिमिटेड है। तो मेरी सजेशन ये होगी, पहले 2 साल टैक्स से मीलों दूर भागें, बेसिक वकालत करनी सीख लें, तो उसके बाद अगर मामू चाचू जानने वाले हैं टैक्स के अंदर, तो बाय ऑल मीन्स देन एंड अप देयर। वहाँ पे भी अच्छी वकालत वगैरह हो जाती है, बट अच्छे आई डोंट नो, बहुत लिमिटेड चेम्बर्स हैं। इट इज़ एन एंटायरली डिफरेंट फील्ड जहाँ पे जान पहचान के ऊपर ही ज़्यादा चलता है। आपने अपने एट द एंड ऑफ द डे इन योर करियर व्हाट यू नीड टू डू इज गिव योर सेल्फ द मैक्सिमम चांसेस ऑफ सक्सेस। यू कैनॉट बी अ पर्सन हु पहले दिन आके कहे कि जी मैंने तो सिर्फ सिविल करना है, मैंने फौजदारी नहीं करना, या मैंने सिर्फ फौजदारी करना है, मैंने सिविल नहीं करना। मेरी तरह अगर फॉर एग्जांपल पकी पकाई खीर मिल रही है, 3rd जनरेशन सिर्फ सिविल के मुकदमे मिल रहे हैं, वो तो हो जाएगा। अदरवाइज इट इज़ सुइसाइडल फॉर यू टू बेसिकली पिक एंड चूज राइट एट द बिगिनिंग ऑफ योर करियर कि मैंने तो यही करना है। यू आर रिड्यूसिंग योर ओन चांसेस। कॉर्पोरेट का काम अगर मार्केट में 1% है और वो फॉरेन डिग्रीज को और बड़े कनेक्टेड बंदों को वो चेम्बर्स वगैरह के अंदर बीच में लिमिटेड चेम्बर्स में मिलता है, एंड यू से कि जी मैंने 1% सिर्फ काम सीखना है, 99% मार्केट के क्लाइंट्स मेरे लिए बीच में हराम है, तो देन यू आर डिस्ट्रॉइंग योर ओन करियर, यू विल नॉट लर्न एट ऑल। आइडिया ये है, योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यू नीड टू मैक्सिमाइज बाय फोकसिंग ऑन थिंग्स जो कि करियर की इब्तदा के अंदर जिसमें आपसे कमाई हो सकती। सोफिस्टिकेटेड आर्बिट्रेशन सीखने का आपको कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि किसी ने आपको अगले 10 साल तक नहीं देनी। आप मेरी फाइलें उठा के या मुझे असिस्ट करके तो बेशुमार सीख सकते हैं, बट आई एम गोइंग टू गेट द करोड़ों या लाखों रुपए ऑन दैट। You will at best be getting 10,000 or 15,000 rupees on that. It doesn't work for you. You need to selfishly focus on the work which you can it potentially get at the beginning of your career. और वहाँ पे आप करें, और अपने आप को सिविल क्रिमिनल आप कहें जी हाँ मैं मुफ्त में करता हूँ, और मेरे से ये भी लिखवा लीजिए, आप लॉ में PhD कर लें, बार कर लें, आप LLM कर लें, ऑल ऑफ दैट इज अटरली यूजलेस एक्सटर्नल के अंदर। आप 3 मुकदमे शुरू से एंड तक यहाँ तक कर लें पाकिस्तान के अंदर, आप PhD वालों को भी, और मैं नचवाता रहा हूँ सिविल कोर्ट के अंदर काम करके, आप उंगलियों पे नचवाएंगे।
because you will know the ins and out, you will know the forms, you will know what a plaint is, you will know कि उर्दू के अंदर क्या है, किधर ऑर्डर शीट कहाँ से मिलती है, कैसे क्या क्या कमियाँ ज़ातियाँ वगैरह इसके अंदर होती हैं, एविडेंस कैसे पढ़ते हैं. आपने पीएचडी करके आ गया, सारी उम्र उर्दू आपने बीच में पढ़ी नहीं, और आपसे एविडेंस तो पढ़ी जा नहीं रही, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स भी प्रॉपर्टी के किए हैं, तो करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी का मुआहदा बै का अग्रीमेंट है, वो अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ, एग्जिबिट आपसे पढ़ी नहीं जाती, तो यूर जीरो डिस्पाइट योर पीएचडी एंड करोड़ों रुपए लगाने के बाद. समथिंग वेंट रॉन्ग. आई थिंक सो इट्स द इंटरनेट प्रॉब्लम. मुझे भी यही आ रहा है. सो आई थिंक वैसे ही खत्म किया. इंक्लूड सर. जी आप बस मैं बोलते ही रहूँगा. रिकनेक्ट होगा तो होगा. हमारा फ़ोन बैठ गया यार. हाँ, डेटा लिमिट कंप्लीट. शुड आई स्विच? Let me just switch on the other data. Is it working now, sir? नहीं. इधर भी सही है. It's taking time. ठीक है. आई डोंट थिंक कनेक्ट हो रहा है. हो रहा है सर? थ्रू तो हो गया. आपके कोई सवाल? एनी क्वेश्चंस? अभी मैंने कहा जो नहीं बोलेगा वो लगा जाएगा, उसको वकील ना कंसिडर करें. जी मैम. एनी क्वेश्चंस? प्रॉबली जहाँ पे क्लाइंट आपको मिलेंगे उधर जाना चाहिए. खर्चे आपके आधे होते हैं, अम्मी अबू के पास रह रहे होते, उधर आके तुम्हें एक एक चीज़ के पैसे देने पड़ेंगे. और अगर तुम्हें कोई जानता ही नहीं है तो तुम्हें किस लिए किसी ने मुकदमा देना है? डजंट मेक सेंस. अगर 6 महीने के लिए सीखना है कि काम कैसे निकलता है, ज़्यादा आपने काम यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, तो फिर तो आप ज़रूर कर लें. बट अदरवाइज़ तुक नहीं बनता. कई बंदे हैं, अमीन आज़म नज़ीर तारड़ एहसन भून साहब हाफिज़ाबाद से आके यहाँ पे छा गए, बट वो लेट आए हैं, बाद में खोसा साहब के पास आए हैं. इब्तदा के अंदर उन्होंने वहाँ पे ही काम किए, या शुरू में ही आ गए होंगे वगैरह, बट चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत कम हो जाते हैं. फिर मैं कह रहा हूँ आपने ख़ुद कैलकुलेट करना है कि मुझे फ़ायदा किस चीज़ में. मैं और हर बंदा बैठ के लिटरली, मैंने आपको पहले भी ये बीच में पॉइंट आउट किया है, ये अगर हमने आखिरी जो बार वोकेशनल कोर्स का किया था ना लेक्चर, उसमें मैं बैठ के कागज़ों से खुद कागज़ पर बैठ के खुद लिखो कि मैं आज क्या हूँ, मेरे बोलने की एबिलिटी, मेरे लिखने की, मेरे पढ़ने की मेरी क्या है, मेरे कनेक्शंस क्या है, मेरे क्या चांसेस हैं. फिर बैठ के खुद सोचो कि मैं इनको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ. मुझे नहीं पता तुम्हारे क्या कनेक्शन हैं, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी कमी बेशी क्या है, मुझे नहीं पता कि तुम क्लाइंट्स हासिल कर सकते हो कि नहीं. वो कागज़ पे लिखो और फिर 6 महीने के बाद खुद दोबारा लिखो कि अब मैंने इम्प्रूव किया है. मैं पहले ने अपने आप को मैंने 3 नंबर दिए थे, ये करके अपने आप को अपने 10 दिए हुए कि एबिलिटी टू गेट क्लाइंट्स, लेकिन क्लाइंट लभदा नहीं, तो गिव योर सेल्फ अगली दफ़ा फिर 2 नंबर्स. हाउ डू आई इम्प्रूव? यू हैव टू फोकस योर सेल्फ, और अपने आप को यू हैव टू सी योर सेल्फ कि मैं कैसे बीच में इसको ठीक कर सकता हूँ. मेरे अबू भी मेरा नहीं कर सकते थे यार. और बात ये है, एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ ऑल अबाउट यू. ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा ना, ओके एक सेकंड मैं रीजॉइन कर. ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि नो वन हैज़ द आंसर्स. आपके वालिदैन भी आपकी मदद नहीं कर सकते. बिस्तर पे अगर आप बैठे रहे, तो बिस्तर पे अगर आप बैठे रहे तो भूखे आप ही रहेंगे. आप उठ के नहीं गए, भूखे नंगे अंदाज के अंदर आपने नहीं काम किया वगैरह, खींचने की कोशिश की, भूखे आप रहे. शराफत में आप पीछे रह गए, बैठे बैठे भूखे आप रहे, दूसरा आगे निकल गया. रियल लाइफ के अंदर या ग्रोन अप लाइफ के अंदर अनफॉर्चुनेटली इशू फ़र्क ये है, और अनफॉर्चुनेटली चीज़ ये है कि इट इज़ डॉग ईट डॉग. और इसके अंदर लिटरली ये चीज़ है कि आपको अपने कोनियाँ मार के आगे जाना पड़ेगा, जिसमें ड्राइव नहीं है. तुम्हारे घर आके नहीं किसी ने तुम्हें देना, मैं खुद बता रहा हूँ कि नहीं किसी ने आके बीच में देना. इसीलिए, और जब तक आप अग्रेसिवली आगे बैठ के नहीं करेंगे, यू नीड टू हैव दैट अग्रेशन इन यू. विदाउट दैट आप फारिग हैं. वेदर यूर फीमेल, वेदर यूर मेल,
वेदर ये अगर आपके पास है, अगर आपसे बोला नहीं जाता तो किसी और चीज़ दे जाओ, ये नहीं आपके लिए, लॉ में नहीं होगा, यू डोंट हैव द स्किल सेट, यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ, इट्स नॉट अ गुड थिंग। मैं कह रहा हूँ मैंने अपने आप को मुकम्मल तौर के ऊपर बदला है, आपको बदलना पड़ेगा, अदरवाइज यू डोंट सक्सीड, यू फेल। सो आई वॉज लकी टू हैव बी तीसरी पुश्त का वकील, ये सारी चीज़ें, बट ये ज़रूरी है अपना आपको, और यू हैव टू एनालाइज योर सेल्फ, पुट योर सेल्फ डाउन, टेक योर सेल्फ, गौर करके बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, मैंने कैसे ठीक करना है। आप कॉर्पोरेट वकील के अंदर चेंबर में लगना चाहते हैं तो 2 अंग्रेजी के लफ्ज़ नहीं लिखने आते, तो आई एम सॉरी, नहीं मुमकिन आपके लिए। मैं आपको, आई डोंट वांट टू बी रूड या आई डोंट वांट टू बी क्रूअल टू यू, बट इट इज़ मच बेटर कि आई एम क्रूअल टू यू राइट नाउ एंड टेलिंग यू कि वेले हो। बात यह है कि अगर मुझे नहीं मिलते बीच में कॉर्पोरेट के मुकदमे विद ऑल द सोफिस्टिकेशन दैट आई हैव, और ये सारे के सारे वगैरह, तो तुम्हें किस केड़े खाते में मिल लभ जाते हैं। यू नीड टू नो वॉट योर एबिलिटीज़ आर। हमारा और एम्बिशियस ज़रूर होना चाहिए कि मैं और बेहतर करूँगा, बट सीधा जाके अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ना लगो, और ना उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। इट्स बेबी स्टेप्स, अभी मैंने क्या करना है, अगला मैंने क्या करना है, अगला मैंने क्या करना है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, आगे बाकी देख लें। सो सर आप देख लो क्या करना है सर। कंक्लूडिंग इस पे सर आपका आइडिया, ठीक है। सर,